Okay, so very good morning everyone. আজি আপোনালোকৰ যদি চাই আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা নতুন টপিক, এইটো হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেভিনিউ চিষ্টেম অফ মডাৰ্ণ আছাম। চ' এতিয়া কি হৈছিলে আমাৰ আগৰ যদি ক্লাছকেইটা চাই আপোনালোকে এতিয়া আপুনি চাব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম আমাৰ এনচিয়েণ্টত বেলেগ আছিলে, মেডাইভেলত বেলেগ আছিলে আৰু মডাৰ্ণতো অফিচলি বেলেগ হ'ব। চ' কিছুমান বস্তু কিন্তু মেডাইভেলৰ পৰা মডাৰ্ণ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াই কণ্টিনিউ কৰা হৈছিলে। অ'কে, যেনেকৈ মডাৰ্ণত যদি আমি চাওঁ যোনখিনি আপোনালোকৰ পষ্ট 1826 ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, সেই ডেভেলপমেণ্টখিনি যদি আপুনি চাই তেতিয়া কি হ'ব, দেয়াৰ আৰ চাম থিংছ উইচ আৰ কমন। যেনেকৈ আপুনি যদি চাই হেল্থ চিষ্টেমৰ কথা, হেল্থ চিষ্টেম ৱাজ কণ্টিনিউ। হেল্থ চিষ্টেমটো তেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে, মেডাইভেলত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু হেল্থ চিষ্টেমটো কি হ'ল কণ্টিনিউ হৈছিলে। অ'কে, চ' সেইকাৰণে এই টপিকটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু এই ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহা বহুত চান্স থাকে, ঠিক আছে। আৰু এই টপিকটো যোনটো আমি চাইছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম অফ মডাৰ্ণ আছাম, এইটো যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই কি হয়, দেয়াৰ ইজ এ ট্ৰানজিশ্যন। চ' আমি এতিয়া যোনখিনি কোৰ্চ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চিন্স উই হেভ কমপ্লিটেড এনচিয়েণ্ট আছাম এণ্ড মেডাইভেল আছাম, চ' এইটো এটা ট্ৰানজিশ্যন ফেজ হয়। এতিয়া কি হ'ব, আমি লাহে লাহে মডাৰ্ণৰ পিনে গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। চ' এই পাৰ্টটো যেতিয়া ঠিক হ'ব আপোনালোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম মডাৰ্ণ আছাম, তাৰপিছত আমি পষ্ট 1826 যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ হয় সেইখিনি আমি চাম। চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া ক্লাছটো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল চ' কি হৈছিলে চাওক, ডেভিড স্কটৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে। চ' ডেভিড স্কট হু ৱাজ এ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। আপুনি যদি চাই অসমৰ প্ৰথম যদি আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয়, ইৰেছপেক্টিভ অফ তেখেত য'ৰ পৰাই আহক, হি মে বি ফ্ৰম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অৰ হি মে বি ফ্ৰম আমাৰ কাৰণে কি হয়, তেখেত হি হেজ কাম ফ্रॉम ए फॉरेन लैंड, राइट। सो अभी देखते हैं डेविड स्कॉट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, ठीक है। सिंस आपको पता होगा 1826 से पहले की बात है, अराउंड 1821 में क्या हुआ था, डेविड स्कॉट नाम के एक एडमिनिस्ट्रेटर आए थे और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो उन्होंने उनके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस आए और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके बाद भी बहुत सारे थे, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। So starting with C, David Scott Conway. So David Scott was the first and foremost British administrator in Assam, and he was the one who had, he was there when the Treaty of Yandabu took place. Okay, so 1826 के जो Treaty of Yandabu है उसके टाइम पे क्या था, डेविड स्कॉट was the administrator. In fact 1821 से ही वो थे, he was in Rangpur as a commissioner. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कमिश्नर ऑफ असम बन गए, ठीक है। वो पहले कमिश्नर ऑफ रंगपुर थे अंडर द you can say under the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम, ठीक है। सो यू सी आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ असम एज पर द ट्रीटी ऑफ यानदाबो, सम इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन असम्स एडमिनिस्ट्रेशन। 1826 तक क्या था, जब तक यू कैन से लाइक देयर वाज अ वेरी chaotic फेज है असम की, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, देयर वाज नो सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बट आफ्टर पोस्ट 1826 अगर देखेंगे, देयर आर मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट टुक प्लेस इन असम। और डेविड स्कॉट के बारे में अगर बोलेंगे, बाद में क्या हुआ, ही बिकेम द एजेंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द कमिश्नर ऑफ असम। सो वो कमिश्नर ऑफ असम के नाम से, या यू कैन से कमिश्नर ऑफ लोअर असम, बाद में क्या हुआ, ही बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटायर असम, ठीक है। सो देखते हैं हाउ डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द रूलर ऑफ असम। पहले हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ब्रिटिश ने कैसे असम में धीरे धीरे क्या पावर होल्ड करना शुरू किया। सो सी इट वॉज कुछ रीजन्स थे, ठीक है, और कुछ मतलब कुछ रीजन्स तो ऑब्वियसली होंगे ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, द ब्रिटिश वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द रूलर्स ऑफ असम। सो पहला अगर देखेंगे, इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस ऑफ बाय द अहोम्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर विच ब्रिटिश एंटर्ड इनटू असम। सो यू नो लाइक जब अहोम्स आए थे, राइट, जब एक्चुअली बर्मीज आए थे उस टाइम पे क्या हुआ, अहोम्स वर वेरी वीक, ठीक है। पहले तो ऑलरेडी जो मोरिया रेबेलियन था वो हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, द अहोम्स टुक द चार्ज एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, धीरे धीरे द ब्रिटिशर्स टुक द चार्ज एंड देयर वर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व्हिच टुक प्लेस। नेक्स्ट क्या था, द बर्मीज इन्वेजन क्रिएटेड ए सिचुएशन इन असम। सो बर्मीज ने क्या किया, जब वो लोग आए थे, सो बर्मीज ने क्या किया, असम में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प लेना पड़ा, ठीक है। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट द डेविड स्कॉट एंड हिज रिफॉर्म्स। सो मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू हो गया से, ठीक है। सो कैसे बर्मीज ब्रिटिशर्स आए थे असम में, हाउ दे एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो देख रहे हैं हम लोग। सो आफ्टर द बर्मीज इन्वेजन ए सिचुएशन वाज क्रिएटेड इन असम, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको पता होगा चंद्रशेखर किंगॉन जो थे और वांडर किंगॉन उस टाइम पे देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन कि कौन असम का रूलर बनेगा। सो एट दैट टाइम बर्मीज को यहाँ से भेजने के लिए, बर्मीज का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प लेना पड़ा था। आफ्टर डिफीटिंग द बर्मीज क्या क्या,
the company government became the master of the entire province including the frontier regions. Frontier regions मतलब जो हिली एरियाज थे उसके भी मास्टर्स बन गए एंड प्रोविंसेस जो थे आसाम के उनके भी वो मास्टर्स बन गए. So after the gift of the Burmese, the Ahums and the entire frontier tribes considered the Britishers as their protector. So ऐसा उनको सेफ फील होने लगा कि अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहेंगे so we will be safe from the Burmese invasion. In future भी Burmese invasion हो सकता है. असम में तीन Burmese invasion हो गया था, राइट? 1817, 1819 और 1821 में थर्ड वाला, ठीक है, लास्ट. फिर उसके बाद क्या हुआ? 1824 में 5th मार्च, याद रखिए डेट को, 5th मार्च 1824 में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बार्मीज वॉर हुआ था. But the Britishers had to interfere in the internal matters of Assam as well as they had to fight with the Burmese. क्यों Burmese के साथ फाइट करना था? क्योंकि Burmese ने क्या किया 1821 के बाद, आफ्टर पोस्ट 1821 अगर देखेंगे, Burmese had tried to occupy the British territories. उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे चार्ज, रेड्स ये सब करना शुरू किया. तो ब्रिटिशर्स को मतलब जोर जबरदस्ती वहाँ पे इंटरफेयर करना ही पड़ा है फाइनली, ठीक है. पहले तो वो लोग नहीं चाहते थे बिकॉज दे हैड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. बट क्या हुआ 1821 के बाद बर्मीज वहाँ पे रुके नहीं, दे स्टार्टेड टू एक्सपांड टुवर्ड्स द वेस्ट. जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे रंगपुर वगैरह, ठीक है, और जो भी आपको इस टाइप मतलब कुछ बिहार की साइड में जो एरिया है, ठीक है, वो सारे एरिया में क्या हुआ धीरे धीरे रेड्स करने लगे वो लोग. तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि सिंस बर्मीज हैड एनक्रोच्ड देयर लैंड, इसके वजह से उनको बार्मीज से फाइट करना ही पड़ा. दे हैड टू द वार काउंसिल, हम देखेंगे बाद में, वार काउंसिल एक था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी तो हमको फाइट करना ही है. उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट, AMHERST. लॉर्ड एमहर्स्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है. और एमहर्स्ट के टाइम पे ही ट्रीटी ऑफ यार्न को साइन हुआ था 1824 वाला, ठीक है. अच्छा, सो दिस वाज अबाउट डेविड्स वॉर. कैसे वो आए थे, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग किया आसाम में, ठीक है, और क्या क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से उनको ये मतलब यू कैन से दे हैड ओवरटुक आसाम. अभी अगर आप देखेंगे, देखिए पहले सेटलमेंट विथ फ्रंटियर ट्राइब्स. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पहले उन्होंने डायरेक्टली असम को कंक्वायर नहीं किया. उन्होंने क्या किया? ये फील करा जो फ्रंटियर ट्राइब्स थे, ठीक है. फ्रंटियर ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जो अरुणाचल, डोकला हिल्स, ये सब जो एरिया है ना, मिशमी हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स, इन्होंने क्या किया? पहले उन ट्राइब्स वालों को ये मतलब एश्योरेंस दिया कि यू डोंट वरी, विल बी योर प्रोटेक्टेड, ठीक है, हम जब तक रहेंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो डिपेंडेंसी बढ़ाया पहले. So British East India Company took the opportunity of the weakness of the Ahums and adjoining tribal states of the region and उन्होंने क्या किया? रिस्टोरेशन प्रोसेस जो था वो शुरू कर दिया. रिस्टोरेशन मतलब क्या? जो पॉलिटिकल रिस्टोरेशन है वो धीरे धीरे शुरू कर दिया. फिर क्या किया? इन द फर्स्ट प्लेस डेविड स्कॉट उस टाइम पे गवर्नर मतलब वाज द एजेंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कमिश्नर ऑफ रंगपुर भी था. तो उन्होंने पहले क्या किया? जो काछाड़ के राजा थे, राजा गोविंद चंद्र, उनको क्या किया? उनको अपनी जो फॉर्मर पोजिशन है एज ए किंग, क्योंकि वो बर्मीज जब आए थे वो किंगशिप से क्या चला गया था, वाज नॉट अ किंग एनीमोर. सो उनको फिर से किंग बनाया गया और बोला गया कि क्या यू हैव टू गिव अस एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10,000 रुपीज. मतलब ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको राजा बना दिया. यू हैव टू गिव अस द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और यू कैन से प्रोटेक्शन मनी, ठीक है. 10,000 रुपया दीजिए, आप हमेशा के लिए किंग बना रहेंगे. डोंट वरी अबाउट द बर्मीज और एनी अदर ट्राइब्स, वी विल प्रोटेक्ट यू. दूसरा क्या किया उन्होंने? जैंतिया का जो राजा था, राजा राम सिंहा. सो राम सिंहा को क्या किया? सेम जो काछाड़ के साथ हुआ था, सेम थिंग हैपेंड विथ जैंतिया. लेकिन एक डिफरेंस है, जैंतिया बहुत बड़ा था, काछाड़ से भी बड़ा था बहुत, ठीक है. तो जैंतिया वाले राजा को उन्होंने पैसा नहीं मांगा, बट ये बोला कि अगर हमको ज़रूरत है आपकी जैंतिया आर्मी का अगेंस्ट द बर्मीज अगर फाइट करना है, देन यू हैव टू कम फॉर आवर सपोर्ट, और उसके बदले हम भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर वो अटैक करता है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. गंभीर सिंह जो थे मणिपुर का राजा, ही वाज आल्सो प्लेस्ड इन अ थ्रोन बाय मेंटेनिंग एन आर्मी इन दिस स्टेट. सो अगर आप देखेंगे काछाड़ का जो किंग था उस टाइम पे बहुत वीक था एक्चुअली, क्योंकि देखिए वो अपने किंगडम से ही वो वंचित था. वो राजा था लेकिन बार्मीज ने उसको भगा दिया. तो आप सोच सकते हो कि बार्मीज ने काछाड़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. सो काछाड़ का राजा जो कि बहुत वीक था ना, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनसे फायदा लिया. मतलब आपको मैं बचाऊंगा, आप 10,000 रुपया दीजिए. बाकी जो किंग्स थे मणिपुर और जैंतिया के, वो कम्प्लीटली उन्होंने मतलब थ्रोन नहीं छोड़ा था. दे वर स्टिल होल्डिंग द थ्रोन. हो सकता है उनका बहुत नुकसान हुआ, बट दे वर नॉट ओवरथ्रोन. ओके, तो उनके साथ ब्रिटिशर्स ने अलग पॉलिसी क्या किया कि मतलब दैट इज अगर हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस का अटैक होता है, यू हैव टू हेल्प अस. मणिपुर एंड द जैंतिया आर्मी हैज टू कम, एंड अगर आपके किंगडम में होता है देन वी विल प्रोटेक्ट यू. सो देखो कैसा वो लोग ब्रिटिश डिवाइडेड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं. यहाँ से शुरू होता है डिवाइडेड रूल पॉलिसी. एक से वो लोग प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है क्योंकि वो वीक है,
यहाँ पे उनसे प्रोटेक्शन मतलब म्यूचुअल प्रोटेक्शन मांग रहा है, ठीक है, सीधा पॉलिसी। फिर डेविड स्कॉट ऑल्सो मेड अरेंजमेंट विद द सिंधूस, खम्बीज और मोटक्स, जो फ्रंटियर ट्राइब्स के जो प्लेन ट्राइब्स थे असम के, जो ईस्टर्न बाउंड्री के जो सिंधूस, खम्बीज और मोटक थे, ठीक है, इनके साथ भी क्या हुआ, ट्रीटी बना दिया ब्रिटिशर्स। सबके साथ इंडिविजुअल ट्रीटी बनाए, सबको ये फील कराया कि यू आर समथिंग स्पेशल, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग द ट्रीटी विथ यू, दैट इज डिवाइडेड ना। आप किसी को सिंपली ये फील करा दो कि वो स्पेशल है, दो फ्रेंड है, एक को आप ऐसे लगा दो कि वो स्पेशल है, दूसरा स्पेशल नहीं है, उनके बीच ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट पा रहा है कोई, कोई नहीं पा रहा है, सो दे विल फील जेलस, उससे क्या होगा, उनके बीच ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था, किसी को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया और किसी को क्या किया, उल्टा सबड्यू कर दिया, बोला उल्टा टैक्स करूँगा, ठीक है। सो जो टैक्स दे रहे थे वो लोग सोच रहे थे ये लोग स्ट्रॉन्ग थे इसलिए ये लोग दोस्त थे, तो उनके बीच ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया ना, मनी मन राजाओं के बीच। दैट इज वन रेवेन्यू दिस ट्राइब। अभी देखो ये सिंगोस, खम्बीज और जो मतक्स थे, दिस ट्राइबल स्टेट्स वे गिवन ऑटोनॉमी ऑन द एग्रीमेंट, दे विल नॉट एंटर इन द अलायंस विद एनी अदर पावर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इनको भी स्पेशल फील कराया। देखिए इनको बोला कि आप लोग ट्राइबल्स हो, आप बहुत पावरफुल हो, वी रेस्पेक्ट योर सोवरेनिटी, आप एक काम करो, हम आपकी इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मैटर्स में, बट आप किसी के साथ अलायंस नहीं बनाओगे। कल अहम राजा ने अगर बोला कि चलो हम लोग मिल के, फ्रंटियर ट्राइब्स मिल के, हम लोग अहम्स मिल के ब्रिटिशर्स को भगाते हैं, यू कैन नॉट डू दैट, ट्रीटी साइन कर दिया ऐसे। और ये बोला कि अगर किसी के साथ अलायंस बनाना है देन यू हैव टू टेक अ परमिशन। देखो कैसे ऐसे ही वो लोग ने क्या किया, सारे फ्रंटियर ट्राइब्स के लोगों को बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया असम को, ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं, फिर लोअर असम एंड अपर असम देखेंगे। अभी एनेक्सेशन असम में क्या है, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब्स, पहले तो धीरे धीरे जो मणिपुर थे, जैंतिया थे, काछार थे, राइट, मतलब मोरान जो भी है, ठीक है, सारे लोगों को क्या किया, पहले अहम्स के ऊपर हाथ नहीं किया। देखो कहाँ तक अहम का मेंशन नहीं है, राइट, इन्होंने धीरे धीरे आसपास के सारे हाथ काट दिए, क्योंकि अहम्स ने अहम्स ऑलवेज हैड सम गुड रिलेशंस विद देम। कभी भी मुगल्स आया आप देखोगे कि दौड़किया राजा को, फ्रंटियर किंग्स को कोई ना कोई हेल्प के लिए आता ही अहम्स का, तो धीरे धीरे अहम्स को आइसोलेट कर रहे हैं लोग, समझ रहे हो ना पॉलिटिक्स। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स द कंपनी वाज इन डायलेमा अबाउट द फ्यूचर ऑफ असम। अभी फ्रंटियर ट्राइब्स का तो मैटर्स हो गया, चलो अभी जो मेन असम की जो मेन लैंड है, लोअर असम और अपर असम, इसमें क्या करेंगे, डिलेमा, बिकॉज सबके साथ ट्रीटी हो गया। अहम किंग तो कौन है अभी, चंद्रगढ़ किंग है, त्रिपुरा का किंग है। द ब्रिटिशर्स themselves were confused because both were claiming the throne. दोनों ही बोल रहे थे हम किंग हैं, हम किंग हैं। चंद्रकांत तो बोल रहे हम हैं, पुराना किंग बोल रहे नहीं हमारा है, राइट। Regarding Assam, their intention was to annex the whole part, but they were waiting for an opportune moment. मतलब they were waiting for a very golden moment. टाइम आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, राइट। उनको चाहिए पूरा असम ही चाहिए, बट वो उन्होंने कैसे क्या देखेंगे। Since Upper Assam was greater victim of the Burmese invasion and more prone to the attack from the neighboring hills, company did not think about annexation of Upper Assam. देखिए कितना वो लोग मतलब कितने शार्प है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स से। देखिए उनको पता है कि सारे फ्रंटियर ट्राइब्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और अपर असम जो एरिया है क्योंकि वो बर्मा से वेरी क्लोज है, पहाड़ से काकटेल पर्वत की सबसे वही लाइन से आते हैं ना बर्मीज, तो अपर असम को एनेक्स नहीं करते, हम पहले लोअर असम को एनेक्स कर लेते, क्योंकि अगर मरेंगे पहले भी जो बर्मीज आए थे वो अपर असम नहीं उन्होंने अटैक किया था पहले, फिर बाद में वो गुवाहाटी की तरफ गए, राइट, अपर असम से। तो पहले अपर असम को अगर हम एनेक्स कर लेते तो अपर असम को हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा जाएगा ब्रिटिश के ट्रेजरी से, वो उन्होंने क्या किया, और वहाँ से रेवेन्यू भी कम आता है अपर असम से, लोअर असम से ज़्यादा पैसा आता था टैक्स वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपर असम को एनेक्स नहीं किया, धीरे धीरे किया। देखिए पहले क्या किया उन्होंने, एनेक्स किया लोअर असम को। Since as per the British assumption, Upper Assam was much prone to political crisis, hence they did not think of its annexation. और वहाँ पे भी अपर असम में एक और एक प्रॉब्लम था, बर्मीज को कभी भी फिर से अटैक कर सकते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम था कि अपर असम में क्या थे, हमेशा मतलब कौन किंग बनेगा वही डिपेंड ऑन द डे होता था, कोई सपोर्ट करता था चंद्रकांत किंग को, कोई पुराना किंग को। ब्रिटिश ने सोचा अभी असम को अगर हमको कॉन्क्वेस्ट करना है, एनेक्स करना है, पहले लोअर असम को करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है, पैसा जहाँ से ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। अपर असम से पहले तो पैसा नहीं आता, दूसरा भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के बीच मतलब ये डिफ्रेंशिएशन है कि चंद्रकांत को क्या पुराना, राइट। सो उनको छोड़ दो अपने हाथ में, अपर असम को लेट्स एनेक्स लोअर असम। एट द सेम टाइम लोअर असम वाज कंपैरेटिवली पीसफुल। लोअर असम को क्यों उन्होंने एनेक्स किया, बिकॉज लोअर असम वाज कंपैरेटिवली पीसफुल देन अपर असम,
एंड गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी आता था वहाँ से, ठीक है। हेंस डेविड स्कॉट थॉट ऑफ एनेक्सिंग लोअर असम द कंपनी के लिए, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, फिर ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग अपर असम को कहीं पे भी छोड़ देंगे, थोड़ा तो ग्रिप रखना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, खुद नहीं इंटरफेयर किया, उन्होंने एक अहम प्रिंस को अपॉइंट किया, ठीक है, अपर असम में। अभी देखिए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू रिस्टोर एक अहम प्रिंस इन द अपर असम रीजन फ्रॉम विश्वनाथ टू बुढ़ीडीह। तो विश्वनाथ से लेके बुढ़ीडीह तक जो एरिया था वो ये अपर असम है, क्योंकि वहाँ से आगे अगर जाएंगे तो छुट्टियाँ जो मदक्स आएंगे, मोरंस आएंगे, तो वो टेरिटरी तो क्या हो गया, फ्रंटियर ट्राइब्स की टेरिटरी हो गए। तो जो विश्वनाथ से लेके बुढ़ीडीह तक था वो अपर असम डिमार्केट कर दिया, और विश्वनाथ से लेके कामरूप तक पूरा लोअर असम हो गया, वहाँ से रेवेन्यू अच्छा आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे डिमार्केट कर दिया। और क्या किया, देखो कुछ कंसिडरेशंस भी उन्होंने किए बिफोर रिस्टोरिंग द अपर प्रिंस। पहला, बिफोर रिस्टोरेशन द कंपनी डिसाइडेड टू एस्टाब्लिश द रिसोर्सेज ऑफ अपर असम। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई प्रिंस को लाके बिठा दो, थोड़ा असेसमेंट कर लेते ना, क्योंकि फ्यूचर हमको ये भी तो लेना है, तो असेसमेंट कर लेते वो लोग कि कैसा है वहाँ पे, रिसोर्सेज है कि नहीं। रिस्टोरेशन विदाउट एनी बाइंडिंग माइट क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस विद द फ्रंटियर ट्राइब्स। और एक उनके दिमाग में ये भी था, अगर हम लोग ने कोई अपर प्रिंस को ला लिया तब हो सकता है फ्रंटियर ट्राइब्स से अटैक कर ले, क्योंकि वो लोग तो हमारे साथ भी अच्छे हैं, तब हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो भी हमको कंसिडर करना है। फिर दे थॉट दैट द रिस्टोर्ड प्रिंस माइट अलाइन विद द ट्राइब्स अगेंस्ट द कंपनी, ये भी तो हो सकता है ना। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये कंसिडरेशन मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, रिस्टोरेशन अगर कर दिया तो क्या होगा, रिसोर्सेज अगर बहुत अच्छा हो गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है लोअर असम से, क्या पता कल अपर असम में अगर कोई अच्छा रिसोर्सेज आ भी गया था, ऑयल वगैरह आ गया था ना, डिप्लॉयमेंट, राइट। सो उनको तब तक पता नहीं था कि पेट्रोल है, कुछ है ऐसा रिसोर्सेज अपर असम में, उनको लगा अपर असम में कुछ काम ही नहीं है। फिर भी ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे, उन्होंने सोचा कि क्या पता वहाँ पे हो भी सकता है, थोड़ा ऐसे ही किसी को थोड़ी दे देंगे, इतना मेहनत करके हम लोग ने पूरा असम को जीता है, राइट। तो धीरे धीरे एसेस करते गए। फिर सोचा कि अगर फ्रंटियर ट्राइब्स उनको ले लेंगे, अपर असम को अगर ले लिया तो हमारा भी लॉस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने किसी अहम प्रिंस को ला लिया तो वो भी फ्रंटियर ट्राइब्स के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट क्या बगावत कर सकते हैं, रेबिलियन कर सकते हैं। On the basis of these considerations, the Bengal government instructed David Scott to implement a system that prevalent in the Rangpur district known as the non-regulated system। मतलब क्या हुआ, एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है 1773 का, 29 का। सो रेगुलेटेड एक्ट जो होता है, रेगुलेटेड मतलब क्या, रेगुलेशन करना, अनुशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऑफिशियल सिस्टम। एक होता था ब्रिटिशर्स का नॉन रेगुलेटेड सिस्टम। नॉन रेगुलेटेड सिस्टम में डायरेक्ट नहीं करते थे, किसी पॉकेट के थ्रू करते थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया, शिवसागर से लेके अभी बुढ़ीडीह जो है, बुढ़ीडीह से लेके विश्वनाथ तक ये क्या था, अपर असम था। सो रंगपुर में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन रेगुलेटेड सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। रंगपुर कहाँ पे है, शिवसागर के पास है रंगपुर, राइट, शिवसागर में ही है आज के लिए। अभी नॉन रेगुलेटेड सिस्टम क्या होता है हम देखिए। सो देखिए, टेरिटरीज वेर टू बी गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव कंपोज्ड ऑफ पार्टी ऑफ सिविलियंस एंड पार्टी बाय सोल्जर्स। Accordingly, the agent was to administer the civil and criminal system and to supervise the collection of revenue and the superintendent of police। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे देखिए आप, डायरेक्ट उन्होंने प्रिंस को नहीं, उनका प्रिंस तो नाम पे बना देंगे ना, नॉन रेगुलेटेड सिस्टम में क्या होगा, नाम का प्रिंस रहेगा, लेकिन जो आपके मतलब एग्जीक्यूटिव रोल है ना, वो किसको दे दिया, कुछ मतलब एक काउंसिल बना दिया, उसमें 10 सिविलियंस 10 मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो लोग बन के एग्जीक्यूटिव बॉडी बोर्ड बना दिया, ठीक है। राजा तो नाम का है, उसको तो बिल पास करना ही है, राजा इज लाइक द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट में दोनों हाउस में बिल पास हो गया, वो क्या कर सकता है, ही हैज टू पास इट। अगर मनी बिल है वो तो पास करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑर्डिनरी बिल है तो पॉकेट वीटो वगैरह यूज कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग, राइट। सो उस टाइम भी ऐसा ही था, अगर वो बोर्ड ने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पास कर दिया, द किंग हैज टू गिव द मोहर, राइट। दूसरा, एजेंट ने क्या किया, सारा क्रिमिनल और जो सिविल जस्टिस सिस्टम है आज के दिन में, जुडिशियरी शॉर्ट, एग्जीक्यूटिव भी उन्होंने कंट्रोल किया, देखिए जुडिशियरी भी कंट्रोल किया। जो भी आपके सिविल मैटर्स है, ठीक है, जैसे लैंड डिस्प्यूट्स हो गया, क्रिमिनल मैटर, किसी का कोई मर्डर वगैरह हो गया, कुछ क्राइम हो गया, ऑल दिस मैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है। जैसे रेवेन्यूज के लिए अलग ऑफिसर्स हो गए, और क्रिमिनल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन था, एजेंट था, जो हम बाद में देखेंगे, उनका नाम हो गया एजेंट टू द एजेंट ऑफ लोअर असम, अपर असम, ठीक है। और एक एसपी भी रख दिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी सिस्टम जो है तब से शुरू हो गया था, 1923 के बाद भी आप बोल सकते हो।
All other branches was to look after by the spirit and principles of the existing regulations. ऐसा भी था, उन्होंने कंप्लीटली अहम का जो सिस्टम है वो नहीं उठाया, जो गामा की वो सिस्टम थी ना एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हो, जो भी सिस्टम था वो भी उन्होंने पैरेलल चलाता रहा और उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी धीरे धीरे वो लोग लागू करने लगे थी नॉन रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, द प्रिंस ऑल्सो ऑथराइज टू कंडक्ट ब्रिटिश रिलेशंस विद द फ्रंटियर ट्राइब्स, और प्रिंस को भी ये बोल दिया कि देखिए फ्रंटियर ट्राइब्स में जितने ट्राइब्स है सारे ब्रिटिशर्स के साथ क्या है, दे हैव साइंड अ ट्रीटी, तो आपको भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करनी है, कल जाके आप अटैक मत कर दो मॉडर्न किंगडम में जाके। ठीक है, सो सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर किया एंड आफ्टर दैट दे हैड मेड दिस नॉन रेगुलेटरी सिस्टम। अब अभी देखिए नाम तो रख दिया नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, बट एक्चुअली दे आर रेगुलेटिंग। ठीक है, दिस इज ब्रिटिश पॉलिसी और डिवाइडेड रूल पॉलिसी तो है ही। तो इन्होंने क्या क्या पहले जो असम कंप्लीट असम था उन्होंने अभी बना दिया ये लोअर असम या अपर असम, दो भाग कर दिया उन्होंने, लोगों के मन में भी डिवीजन लाना शुरू किया। देखिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज वो लोग बोलते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट एक्चुअली वो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते थे पूरा असम को। अगर वो लोग पूरा असम को कन्वर्ट करने जाते इधर उधर रेवल्यूशन शुरू हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, लोअर असम वाले थोड़ा कमर्शियल माइंड के थे, तो बिजनेस वगैरह अच्छा चल रहा था बंगाल के साथ, लेट देम बी बिजी विद दैट। अपर असम में क्या करेंगे, राजा तो हमेशा ब्रिटिश के डर में ही रहता है, आसपास के फ्रंटियर ट्राइब्स को अच्छा दोस्ती के साथ बना लेते हैं, हम कुछ रूल्स डाल लेते हैं, हमारे हिसाब से चलेंगे, जब जरूरत होगा उनको बुला लेंगे, ब्रिटिश के साथ फाइट करने के लिए। देखिए दो तरफा वो लोग गेम खेल रहे हैं। अभी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ये तो पता चल गया अपर असम लोअर असम बना दिया। ईच डिवीजन वॉज प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द चीफ कमिश्नर। ठीक है, जैसे देखिए हम दो कमिश्नर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, एक जो लोअर असम में रहेगा और एक अपर असम में रहेगा। ठीक है, डेविड स्कॉट जो थे वाज प्लेस इन चार्ज ऑफ लोअर असम। लोअर असम जो पहले बॉर्डफुकन के अंदर आता था, अभी डेविड स्कॉट बन गया उसका इंचार्ज। ठीक है, इमीडिएटली। और आप बोल सकते हो असम का पहला एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, डेविड स्कॉट ही है। आप IAS ऑफिसर बोलो, आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलो, इट वाज डेविड स्कॉट है ना। ठीक है, सो डेविड स्कॉट वाज चार्ज ऑफ लोअर असम और उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, गुवाहाटी में था। और लोअर असम और उनको सीनियर कमिश्नर नाम दिया गया। कमिश्नर में भी दो पार्ट कर दिया उन्होंने, एक सीनियर कमिश्नर था, एक जूनियर कमिश्नर था। जो सीनियर कमिश्नर था सीनियर बना दिया उसको, क्यों पता है, लोअर असम बहुत पैसे वाला जगह था, तो डेविड स्कॉट बहुत मैंने आप बोल सकते हो बहुत विश्वासी लोग था, विश्वासी है। ठीक है, सो इतना विश्वास है इसलिए डेविड स्कॉट को क्या बना दिया, सीनियर कमिश्नर बना दिया और लोअर असम पूरा चार्ज दे दिया। गुवाहाटी में उसको हेडक्वार्टर बना दिया। डेविड स्कॉट वॉज हैप्पी इन गुवाहाटी। दूसरा जो है अपर असम में किसको बनाया, कॉलोनल रिचर्ड्स, नाम मतलब याद रखिए, कॉलोनल रिचर्ड्स वॉज द जूनियर कमिश्नर। ठीक है, और उनको कहाँ पे बिठाया गया, उनको रंगपुर में बिठाया गया। पहले डेविड स्कॉट खुद रंगपुर में था 21 के टाइम पे, बट अभी सीनियर कमिश्नर कौन बन गया, सीनियर कमिश्नर उल्टा डेविड स्कॉट बन गया, लोअर असम का इंचार्ज बन गया एंड डेविड स्कॉट वॉज रूलिंग असम यानी इट कैन से अपर असम फ्रॉम गुवाहाटी। और लोअर असम में अपर असम में कौन आ गया, कॉलोनल रिचर्ड्स। ठीक है, और वो कहाँ पे थे, ही वाज इन रंगपुर। ठीक है, अभी समझ में आया ना। अभी देखिए डेविड स्कॉट और कॉलोनल रिचर्ड्स को अकेले ही पूरा नहीं संभाल सकते, इसलिए छोटे छोटे जूनियर ऑफिसर्स भी बनाएंगे। जैसे देखिए डेविड स्कॉट वॉज असिस्टेड बाय 2 कैप्टन्स, एक का नाम था कैप्टन व्हाइट, दूसरा कैप्टन डेविड स्कॉट। ठीक है, सो आप अभी दिमाग पे एक मैप बना दीजिए। लोअर असम में डेविड स्कॉट था, ही वॉज द सीनियर कमिश्नर, कैपिटल था गुवाहाटी। अपर असम में अगर देखेंगे तो कॉलोनल रिचर्ड्स था, रंगपुर में था एंड ही वॉज द जूनियर कमिश्नर। डेविड स्कॉट को हेल्प करने के लिए 2 कैप्टन्स को लाया गया, एक था व्हाइट और दूसरा था डेविड स्कॉट। ठीक है, क्यों लाया गया, अपर असम भर में रहे कोई बात नहीं, लोअर असम में लेकिन कंट्रोल रहना चाहिए, रिसोर्स बहुत है वहाँ पर, पैसा बहुत है, इसलिए ताकि डेविड स्कॉट को भी अगर कभी ऐसा देखे, ऐसा लग गया कि डेविड स्कॉट भी अपने रास्ते से हट गए, देन कैप्टन व्हाइट एंड कैप्टन डेविडसन विल डेयर टू कंट्रोल। समझ में आ रहा है ना, इसलिए आपको आप देखो कि कॉलोनल रिचर्ड्स को इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दिया गया, डेविड स्कॉट वॉज गिवन फैसिलिटी एज वेल एज उनके ऊपर नजर भी रखा गया था। राइट, अभी देखिए डेविड स्कॉट एंट्रस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ द स्टेट। पहली बात है लोअर असम में डेविड स्कॉट आए, सीनियर कमिश्नर था, तो उनका काम क्या था, फर्स्ट ये तो ऑर्गेनाइज द आर्मी इन्फेंट्री। सो उन्होंने क्या किया, एक नया जो आपके रंगपुर में जब वो ऑलरेडी कमिश्नर थे 1821 में डेविड स्कॉट, ठीक है, 1826 के बाद लोअर असम आ गए, बट 1821 से 25 जब फर्स्ट एंग्लो बार्मिज वॉर हुआ था ना, तब वो रंगपुर मतलब लोअर असम की अपर असम के ही वो क्या थे, कमिश्नर थे। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे ही रंगपुर कॉर्प्स नाम का एक इन्फेंट्री
बैटेलियन बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी रोंगपुर कॉर्प्स में उन्होंने और भी एक्स्ट्रा कुछ इन्फेंट्री हैं, नए कॉर्प्स उन्होंने बनाए, जैसे सिलेक्ट लोकल कॉर्प्स और असम लाइट इन्फेंट्री, ये सारे उन्होंने बनाए, ठीक है, बनाया था। अभी देखिए, डेविड स्कॉट entrusted the responsibility defense of the state to Rangpur Corps consisting of select local corps and Assam Light Infantry। मतलब रॉन्गपुर कॉर्प्स जो था उसमें सिलेक्ट लोकल कॉर्प्स और असम लाइट इन्फेंट्री, ये दोनों इन्फेंट्रीज को भी ज्वाइन कर दिया ताकि वो और बड़ा हो जाए रॉन्गपुर कॉर्प्स, ठीक है। एंड विड्रू द रेगुलर ट्रूप्स। सो जो रेगुलर ट्रूप्स थे, रेगुलर ट्रूप्स मतलब ब्रिटिश के जो रेगुलर ट्रूप्स थे, बाहर से जो एंग्लो बार्टिश वॉर मैंने बोला था 5 मार्च 1824 को हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो बार्टिश वॉर में जो भी ट्रूप्स आए थे वो लोग चले गए। अभी लोकल जो लोग थे उनको क्या किया, ये कॉर्प्स में रॉन्गपुर कॉर्प्स के अंदर धीरे रिक्रूट करने लगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट टाइम्स। एक कैंटोनमेंट, परमानेंट कैंटोनमेंट वाज एस्टैब्लिश इन विश्वनाथ रीजन। आपने देखा है क्या वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया विश्वनाथ में? शायद है भी नहीं है, आई डोंट नो, नहीं शायद बने वो शायद, क्योंकि बहुत पुराना है ना, मुझे 1826 1828 उस टाइम की बात है, मोर देन 100 ईयर्स है, 150 ईयर्स। सो ये हो सकता है चला गया, ठीक है। पर ये परमानेंट कैंटोनमेंट जो है ना, मेन बेस आप बोल सकते हो। जैसे अभी अगर देखोगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस पीसपुर में ही है, कुछ भी होगा यहाँ से ही फ्लाइट, सुखोई हो, मिग हो, सारे यहाँ से यहाँ पे ही तैनात हैं। यहाँ पे मीसा में भी है, और पहले यहाँ पे था, फिर अभी मीसा में और बड़ा बना है। तो अभी ये क्या क्यों हो रहा है, ऐसे तो हमारा शिलोंग में है नॉर्थ ईस्ट के एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर्स है, बट अगर देखेंगे आप लोग जो बेस है इसको, इसका मेन बेस है। अगर अटैक कभी चाइना करेगा ना, इसको नहीं करेगा पहले, ये भी बात है, क्योंकि एयरफोर्स को पहले डिस्ट्रॉय करना होता है, जो आर्टिलरी फायर। अगर यहाँ पे अटैक होता है तो इसको मेन का फर्स्ट बेस, वाई बिकॉज दे विल डिसमेंटल द एयरफोर्स, उसके बाद इजी हो जाता है। बट वो लोग क्या है कि देखिए, आप अभी हम जहाँ पे हैं ना, देखो आई मीन असम नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अभी क्या होता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर्स हो या फाइटर जेट्स हो, उनके भी कुछ लिमिट्स होते हैं, उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर वो लोग नहीं उड़ सकते हैं, राइट। इसलिए अगर देखोगे चाइना ने जब अटैक किया था, और पहले भी मतलब जो भी हिस्ट्री है, कभी दे हैव नेवर यूज्ड एयरफोर्स। अगर इंडिया में देखेंगे कभी एयरफोर्स यूज नहीं हुआ आज तक, ठीक है, लेकिन आजकल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है, ठीक है। इंडिया भी बना रहा है, AMCA जिसको बोलते हैं, सो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना है। बस ऐसा भी हो सकता है कि वो पहाड़ी के ऊपर से भी आ सकता है, उस लेवल का बना है। मतलब जेट फाइटर का एक लिमिट होता है, क्योंकि उसके ऊपर से अगर जाएगा तो जेट इंजन जो होता है, एमटेक का एमटेक इंजन होते हैं ना, वो ज़्यादा ऊपर जाने से क्या होता है, उनका एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो फ्यूल मतलब कॉन्डेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए वो क्या गिर जाएगा। क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स का एक ऑल्टीट्यूड होता है 35 से 40 किलोमीटर, हाँ 40,000 मीटर के ऊपर से वो लोग जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं उड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि एटमोसफेयर बहुत थिन होता है, हवा नहीं होने तो उड़ेगी कैसे, इंजन कैसे चलेगा, राइट। सो ये अभी जो नया फाइटर जेट्स बन रहे हैं ना, AMCA वाले या 5th जनरेशन, उनके पास भी है बहुत सारे। लेकिन 1962 की बात कर रहा था, नाउ थिंग्स हैव चेंज, ओके, 2024 है ये फाइटर जेट्स में काम, इसलिए तो लगाया है यहाँ पे, थोड़ी नहीं तो यहाँ पे लगाता ही नहीं एयरबेस, इतने दिन तो वो लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, नाउ दे हैव गिवन प्रायोरिटी। और पहले क्या होता है, हर एक जगह में अगर अटैक होता है ना, पहले आर्टिलरी शेडिंग होता है, आर्टिलरी फायर होता है। आर्टिलरी फायर से क्या करते हैं, इन्फेंट्री हो, कोई भी मतलब बॉर्डर एरिया में अगर इन्फेंट्रीज हो, कैंप्स हो, वो सारे डिस्ट्रॉय कर देते, उसके बाद द एयरफोर्स टेक्स प्लेस, फिर इन्फेंट्री आएगा लास्ट में, पहले पूरा साफ कर लो, डायरेक्ट इन्फेंट्री को भेज दिया हम लोग तो भाई समझ रहे ना क्या हो गया, उनका ड्राइव फ्राई हो जाएगा, ठीक है। आर्टिलरी शेडिंग होगा, सब तरफ से वो लोग अटैक में आ जाएगा। अभी इजराइल भी वही कर रहा है ना, इजराइल ने, इफ यू सी, मैं थोड़ा यहाँ से ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, इजराइल जब वो हमास को मतलब डिफीट किया, ठीक है, गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्राइक में, उसके बाद दे हैव टर्न वर्ड्स हिजबुल्ला ने फिलिस्तीन, सॉरी ये ऊपर गया, मतलब जो आई मीन क्या सीरिया नहीं, लेबनान में है, राइट। सो लेबनान में वो लोग जा रहे हैं, अभी नॉर्दर्न फ्रंटियर को लिया, अभी फ्रंटियर एक साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर था, अभी नॉर्दर्न फ्रंटियर को लिया, वहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे हैं। इजराइल ने पहला गलती ये किया था कि फुट सोल्जर्स को भेजा था, एक्चुअली गलती नहीं किया, उनका स्ट्रेटेजी ही है ये,
कुछ एक दो बैटेलियन भेजा था, फिर देखा बहुत कैजुअलिटी हो गया. नाउ दे हैव स्टार्टेड आर्टिलरी एरिया या वो प्लेन से वहाँ पे बोम्बार्डमेंट कर. पहले हिजबुल्लाह का जो ठिकाना है उसको साफ कर लो, देन वी विल अटैक लेबनान, वी गो इनसाइड बेरूत. उसके बाद वो लोग थर्ड ठिकाना ईरान को टारगेट करेंगे. वो लोग अभी चुप थे, आप देख रहे हो ना इजराइल का स्टडी थी. पहले गाजा को साफ कर लिया, हिजबुल्लाह कब से रॉकेट मार रहे थे, इफ यू रिमेंबर. आपको पता है जब हमास ने अटैक किया था, कल की डेट है ना, कल 7 तारीख है ना, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहला वो अटैक किया था इजराइल के अंदर जाके. इफ यू रिमेंबर, वो लोग जो आए थे ना पैराशूट्स लेके, ये लेके, ग्लाइडिंग व्हीकल्स लेके, वो लोग ने अटैक किया था उस फेस्टिवल में. तो कल ही डेट है, 1 साल हो गया है कल एनिवर्सरी. ठीक है, सो कल बहुत सारे कैंडल वगैरह वो लगाए गए हैं बहुत जगह पे. एनीवेज, सो अभी जो ये अटैक हुआ है, जब वो लोग हमास के साथ गाजा में फाइट कर रहे थे ना, उस टाइम पर अगर देखो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में सीरियन बॉर्डर हो या आई मीन लेबनान के बॉर्डर हो, उस साइड में हिजबुल्लाह तब भी अटैक कर रहा था. तब आयरन डोम हो, एरो सिस्टम हो, वो लोग से कंट्रोल कर रहे थे. तब फाइट की कंसंट्रेशन जो था ना वो कम्प्लीटली गाजा में था. आफ्टर गोइंग नॉर्थ टू साउथ ऑफ गाजा, दो बार रिपीट मान लिया, ठीक है, कार्पेट बॉम्बिंग करके. उसके बाद क्या किया, नाउ दे हैव टर्न, ये ठंडा हो गया ना हमास वाले यहाँ पे, नाउ दे हैव टर्न टुवर्ड्स हिजबुल्लाह. और अभी ईरान वो सेम चीज़ गलती कर रहा है जो पहले हिजबुल्लाह करता था हमास के टाइम पे. फिर जब लेबनान विल बी थ्रेटेनिंग, उसके बाद दे विल टर्न टुवर्ड्स ईरान. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लो आयरन में, क्योंकि अभी क्या हुआ, ईरान के साथ अगर फाइट होता है ना, इंडिया में बहुत इम्पैक्ट होगा उसका. 2 प्रोजेक्ट्स इंडिया का आए थे, इंटरनेशनल INSTC बोलते हैं ना, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक है IMEC, इंटर मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लेना, क्योंकि वो कम्प्लीटली आप देखोगे वो ईरान के थ्रू ही जाता है. चाबहार पोर्ट ईरान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर ईरान के पेट्रोल एरिया, अगर पेट्रोल जो पेट्रोलियम डिपोजिट्स है, ठीक है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तो है ही, पेट्रोलियम डिपोजिट में अगर इजराइल ने अटैक किया ना, इंडिया का मोर देन 90% ऑयल ईरान से आता है. पता है आपको, ऑयल का दाम बढ़ जाएगा. क्रैश जो स्टॉक मार्केट से वो क्रैश कर रहा है, ऑयल के स्टॉक्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं. Why is this happening? Because there are chances कि after flattening Lebanon, Israel will turn towards Iran. ईरान में घुसेंगे या ईरान का रेजिम चेंज करेंगे. हो सकता है नवंबर में US इलेक्शन है, जो बाइडेन के कमिंग टू पावर, और अगर जो बाइडेन आ गया, ठीक है, देयर इज ए हाई चांस कि दिस वॉर विल स्टॉप. हाउ? IR में हमेशा लिंक करके पढ़िए. अभी देखिए, ईरान, रशिया, चाइना, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो बाइडेन अगर देखेंगे ना, इज नॉट इन गुड रिलेशंस विद रशिया. पुतिन को मिलता ही नहीं है व्लादिमीर पुतिन को. बट डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पुतिन. यू नो इट और नॉट? इसलिए सारे वर्ल्ड सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आ जाए. एवरीवन वांट्स डोनाल्ड ट्रम्प इन पावर. रीजन, और उसके ऊपर भी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ के ऊपर 2 बार एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है अब तक, मारने को ट्राई किया. क्यों? बिकॉज जो लोग ये वार नहीं रोकना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू किल डोनाल्ड ट्रम्प. रीजन, डोनाल्ड ट्रम्प अगर पावर में आ गया, रशिया इज द की, ईरान इज द की. रशिया अगर रशिया के साथ अच्छे टर्म्स आ जाएगी, यूएस यूरोप को बोलेंगे स्टॉप सपोर्टिंग यूक्रेन, लेट देम सॉल्व देयर मैटर बाय टॉक्स. बात हो जाएगा, यूक्रेन और रशिया का सॉल्व हो गया. ठीक है, फिर जो अगर मिडिल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में आएंगे, वेस्ट एशिया में, उसमें भी आप देखोगे इजराइल को कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, इजराइल को हो गया, बहुत हो गया, आपने अपना बदला ले लिया, एरिया कैप्चर करके गाजा पट्टी, अभी यू जस्ट विथड्रॉ योर ट्रूप्स एंड एवरीवन बी हैप्पी. ईरान को भी बोल देगा चलो, क्योंकि रशिया, ईरान को डायरेक्ट नहीं बोलेगा ट्रम्प, बट रशिया के थ्रू बोलेगा लेट्स स्टॉप द वॉर. सो एवरीवन वांट्स ट्रम्प इन पावर. कि 2 मेजर बैटल्स रुक जाएंगे. अगर नहीं रुका ना, डोनाल्ड ट्रम्प अगर नहीं आए, टेलिंग यू वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा 2025 में, क्योंकि अलायंस अभी बन गए हैं. रशिया, चाइना और ईरान एक अलायंस हो गया है. पाकिस्तान किसी का नहीं है, ठीक है, मर्सनरी आर्मी से. पाकिस्तान किसी का नहीं, सच में बोल रहा हूँ. पहले तालिबान का था, कभी यूएस का था, कभी रशिया के साथ मिलने को जाता है. ये कंफ्यूज, डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं है उनका. और इंडिया, अगर इंडिया हमारे देश की बात कर रहे हैं तो इंडिया सभी का है. इंडिया इज अ विश्व गुरु, इंडिया सभी का है. इंडिया जिसको प्रॉब्लम होता है, इंडिया इनफैक्ट पाकिस्तान की सेलर्स को भी वो हेल्प करते हैं. राइट, मेडिटेरेनियन में जब अटैक हुआ था कुछ पायरेट्स का, तो आपने न्यूज़ में पढ़ा था ना, रिसेंटली पाकिस्तानी सेलर्स को भी हेल्प किया इंडिया ने. तो इंडिया सबका है, विश्व गुरु है. बट पाकिस्तान किसी का नहीं है, जगह किसी का नहीं है. वो लोग यूएस से पैसा लेते हैं कभी कभी, तो वो लोग अफगानिस्तान को बुरा भला कहते हैं. कभी अफगानिस्तान को बोलते हैं हम लोग मुस्लिम बिरादरी के हैं, योर ब्रदर्स. कभी ईरान को बोलता है हम लोग भाई हैं, कभी ईरान के अगेंस्ट की फाइट करने जाए. तो सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. ओके, सो
पर बोल रहे तेजपुर इज द बेस्ट, याद रखिए, क्योंकि पहला अगर अटैक होगा या ड्यूटी अटैक अगर होता है ओके ओके। सो अभी विश्वनाथ पहले कैंटोनमेंट था, अभी आप बोल सकते हो वही कैंटोनमेंट कहाँ है, मिसा में। मिसा कैंडी भी बोलते हो उसको, राइट? मिसा मिसा एक्चुअली मिलिटारी आर्मी, मिलिटारी पुलिस जो আমি কওঁ তাৰ কাৰণে মই কেবি মিছাতে পঢ়া 11 মানে 11 তো বেংগলৰ গুচি গৈছিলোঁ এক বছৰ। মই যেতিয়া বছৰত মানে যিটো বেটছত সোমাইছিলোঁ 2008 সেইটো ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিলে কেবি মিছা বেংগলৰ। সবেই কেবি মিছাটো চাইছোঁ মানে যোনখিনি পুলিচ আৰ্মি থাকে ন, সেইখিনি ৰেড কালাৰ টুপি পিন্ধে, আৰু যোনখিনি আৰ্মি ৰেড কালাৰ টুপি পিন্ধে দিছ মিলিটাৰী পুলিচ। মিলিটাৰী পুলিচবিলাকৰ ডুৱেল ৰোল থাকে, দে আৰ পাৰ্ট অফ দ্য মিলিটাৰী মানে আৰ্মি এণ্ড দে পাৰ্ট অফ দ্য পুলিচ আছে। সেইকাৰণে আপুনি চাবচোন মিছন চাইডে যিটো পুলিচ চলি থাকে ৰেড টুপি পিন্ধা এইবিলাক কি হয়, পুলিচে হয়, মিলিটাৰী পুলিচ হয়, সেইকাৰণে সিহঁতে পাৰে, নহ'লে নোৱাৰিলে। এনেই নৰ্মেল আৰ্মিটো উঠি পিন্ধি নৰকে চাব, সিহঁতে ৰেড টুপি পিন্ধি থাকে, পিছত মিলিটাৰী পুলিচ আৰ্মিৰ ভিতৰতো থাকে। অঁ যেতিয়া আৰ্মি কাপোৰ থাকিব ওপৰত ৰেড টুপি থাকিব, মিলিটাৰী পুলিচ এম পি বুলি লিখা থাকিব, এম পি বুলি লিখা থাকে ৰেড কালাৰ ষ্ট্ৰীট চাব। এই মিলিটাৰী পুলিচবিলাক কি হয়, আৰ্মিৰ পাৰ্ট হয়, আৰ্মি ভেহিকেলছবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কাৰণে সিহঁতক বনোৱা হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্টটো, ঠিক আছে। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্টটো আপুনি যদি চাব চিভিল ট্ৰাফিক পুলিচৰ লগতো থাকে সিহঁতে, যেতিয়া মিলিটাৰী ভেহিকেল আহে তেতিয়া এক্টিভ হৈ যায়, তেতিয়া ইয়াৰ কাম ৰখি যায়, ট্ৰাফিক পুলিচৰ কাম ৰখি যায়, মিলিটাৰী ভেহিকেলছ কোনো আগত যাব নিদিয়ে তেখেতে, ৰাইট? চ' মিলিটাৰী পুলিচ থাকে, অ'কে। কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়াৰ ওচৰত যে আমাৰ সেইকাৰণে আছে, চব এৰিয়াত নাথাকে কিন্তু মিলিটাৰী পুলিচ। আপুনি যদি চাই আমাৰ চোলমাৰত থাকিব, ইয়াত আমাৰ একচুৱেলি নাই, কিয়? বিকজ ইয়াত কোনো মিলিটাৰী কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়া নহয় ন, চোলমাৰা হওক আপোনাৰ মিছন চাৰিআলি অফিচৰ কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়া আছে, সেইটো কাৰণে আৰ্মি বেছ আছে ন ওচৰে পাজৰে, সেইকাৰণে মিলিটাৰী পুলিচ ট্ৰাফিক পুলিচ থাকে, বুজি পালেনে? চিমিলাৰলি এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ যোনবিলাক হয় সেইবিলাকো থাকে জেগাই জেগাই। এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰটো আপুনি কিমান আণ্ডাৰত আহে জানেনে? ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ হৈ গ'ল, আপুনি বা এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ হৈ গ'ল, আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন হ'লে কি হ'ব, ইউ বিকাম DTO। তেনেকৈ আপোনাৰ MVI থাকে, মটৰ ভেহিকেল ইনস্পেক্টৰ, সিহঁতৰ যদি প্ৰমোশ্যন হয় সিহঁতৰ DTO হ'ব পাৰে। অঁ DTO হ'ব, এনফৰ্চমেণ্ট নাই চিভিলত থাকে, চিভিলত থাকে, ইউনিফৰ্মত থাকে, ইউজুৱেলি মানে চিভিলত থাকে, কাৰণ কিয় চিভিলত থাকে ভলেণ্ট্ৰি মানে, আৰু কিন্তু থাকিলে মানে কি হয় পটককৈ মানুহে গম পাই যায় ইয়াত আছে, সেইকাৰণে চিভিলত থাকে। য'ত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি কৰি যাব আপোনাৰ এনফৰ্চমেণ্ট, মানে এনফৰ্চমেণ্টৰ অৰ্থ কি হয় যে আপোনাৰ যিবিলাক মটৰ ভেহিকেল এক্ট আছে, মটৰ ভেহিকেল যিবিলাক নিয়ম আছে সেইবিলাক আপুনি এনফৰ্চ কৰিছে নাই, সেইটো বস্তু চাই, যদি নাই কৰা ফাইন লয়, সেইটো কাম কৰিছে, সেইটো কাম চব। চ' সিহঁতে পুলিচৰ নিচিনাই কাম কৰে, বাট পুলিচ আৰু ট্ৰেফিক পুলিচৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ পাৰ্থক্য এটা আছে। ট্ৰেফিক পুলিচ আপোনাৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰে, কিবা যদি এক্সিডেণ্ট হয় ট্ৰেফিক পুলিচে চাব। এনফৰ্চমেণ্টৰ কাম হয় যে ছিট বেল্ট পিন্ধিছে নাই, মটৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নাই, স্পীড লিমিট মেইনটেইন কৰিছে নাই, ইয়াত ইমানত যাব লাগে, ইয়াত হৰ্ণ বজাব নালাগে, সেইবিলাক কৰিছে নাই, সেই বস্তুবিলাক। চ' ট্ৰেফিক পুলিচৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ দুয়োটাই কাম বেলেগ বেলেগ থাকে, বহুতে ভাবে একেটাই কনফিউজ হৈ যায়। কিছুমানে ভাবে এনফৰ্চমেণ্ট যদি ইনস্পেক্টৰ হয় এইটো আসাম পুলিচৰ পাৰ্ট নহয়, ট্ৰেফিক পুলিচ আসাম পুলিচৰ পাৰ্ট হয়, এনফৰ্চমেণ্টবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে DTO অফিচ বা RTO অফিচৰ তাতে, ঠিক আছে। আৰু মই ৰিচেণ্টলি চাইছোঁ বহুতখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছে মানে আপোনাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ, সেইকাৰণে পষ্টবিলাক ওলাইছে ওলালে পষ্টকেইটা, কিছুমানৰ মানে আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে, DTO হৈছে, বহুত পাৱাৰফুল পষ্ট কাৰণে টাইম লাগে, কিন্তু আৰু DTO যদি হৈ যায় মানে আপুনি কওক আৰু APSC পাছ কৰিব আমি DTO কাৰণে একচুৱেলি মানে প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় জানে, আমাৰ মানে পইচা মানে বহুতে কয় এই এনফৰ্চমেণ্টৰ চাকৰিটো পইচা হয়, DTO পইচা চাকৰি হয়, সেইটো তেতিয়া হয় যেতিয়া আপুনি কৰাপ হ'ব। যদি আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট হয় তেতিয়া কিন্তু আপুনি পইচা মাৰিব নোৱাৰে। মানে এতিয়া ধৰক কোনোবাই ছিট বেল্ট পিন্ধা নাই, আপোনাৰ নিয়মটো এইটো হয় যে কোনোবাই ছিট বেল্ট নিপিন্ধিলে 1000 টকা ফাইন দিব লাগে, আৰু যদি পিছফালে বাচ্চা পঢ়ি আছে, সৰু পোৱালি পঢ়ি আছে, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা 1000 দিব লাগিব। অভাৰত 1000 টকা দিবই লাগিলে, পোৱালি যদি থাকে, পোৱালি যদি ছিট বেল্ট মাৰে তাতো 1000 দিব লাগে, মানে 2000 টকা ফাইন। এটা আমাৰ মানুহবিলাক কি হয়, আমাৰ মানুহবিলাকে বেয়া ক'ব ছাৰ চালান মেকানিকৰ 2000 টকা 500 টকা এটা ৰাখি দিয়ক, আৰু সেইকাৰণে কি কৰাপ হৈ যায়, 2000 টকা গভৰ্ণমেণ্টলৈ যাব চালান দিলে। আপুনি জানে এটা অডিট ৰিপৰ্ট আহিছিলে 2021-22, মই চাই হাইৰাণ হৈছোঁ অডিট ৰিপৰ্টটো, জানেনে?
DTO হওক, MVI হওক, এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰে হওক, ইহঁতে যোনটো চৰকাৰৰ কাৰণে ৰেভিনিউ উলিয়াব লাগে, মানে এটা অডিট কৰিছিলে, অডিটৰ কাম কি হয়, যোনটা অডিট অফিচাৰ থাকে, যোনটা হয় যে সিহঁতেও ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অডিট কৰে, আপোনাৰ DTO অফিচবিলাকৰ ৰেকৰ্ড চাই মানে চেক কৰে, এইবিলাক বস্তু অডিট কৰে। চ' তাত পাইছে আমাৰ কমচে কম অসমত 50 নে 60 কোটি ওপৰ টকা এতিয়ালৈকে কালেক্ট হোৱা নাই। কাৰণটো কিয় বুজি পাইছে, সিহঁতৰ পকেটত কৰিছে অবভিয়াছলি না। চাওক এতিয়া মই কৈছোঁ, আমাৰ চবৰে ভেহিকেল আজিকালি পৰিবহণ যোনটো পৰ্টেল হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মৰ্থ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী ৰোড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট হাইৱে, তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ পৰিবহণ যোনটো পৰ্টেল আছে, তাত গোটেই ৰেজিষ্টাৰ থাকে। আপোনাৰ RC ইনভেলিড হৈছে, আপোনাৰ পলিউশ্যন ইনভেলিড হৈছে, এভৰিথিং ইজ বিং ৰেকৰ্ডেড। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে জানে অসমত কেইজন মানুহ আছে যে RC ইনভেলিড হৈছে, কেইজন মানুহ আছে যে পলিউশ্যন ইনভেলিড হৈছে। আপোনালোকৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰে কৰি কি আছে, ধৰা কিয় নাই এইবিলাকক? সেইটো দেখোন হেলমেট কিনি এই তেনেকুৱা ইনভেলিড RC লৈ ঘূৰি ফুৰিছে। তেতিয়া মানে অডিট কৰিছিলে আৰু পাইছে যে অসমত more than মানে 50 crores টকা পেণ্ডিং হৈ আছে এই দুবছৰত খালি। ডেট মিনছ কি হৈ আছে কথাটো বুজি পাই আছে? অডিটে কি বুজাব বিচাৰি আছে? অডিট ৰিপৰ্টখনে এইটো বুজাব বিচাৰি আছে যে আপোনালোকে ধৰা পেলাইছে, কিন্তু আপুনি পইচা উঠোৱা নাই, চৰকাৰৰ ট্ৰেজাৰীত যোৱা নাই পইচা, আপোনাৰ পকেটত গৈ আছে। ইনডাইৰেক্টলি সেইটো বুজাব বিচাৰিছে অডিট ৰিপৰ্টখনে। চ' আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল অডিট ৰিপৰ্টটো কৰিব, গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টত যি যি চলি আছে লিখা চিন্তা চব ওলাই যাব। মই সেইকাৰণে এইবিলাক ৰিপৰ্টবিলাক পিছে পিছে পঢ়ি থাকোঁ, কাৰণ ফিডবেকবিলাক চাওঁ, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কি কয়। আপুনি চাব, মই নাম নকওঁ, ইয়াত 4জন DTOৰ নামো কৈছে, তাত শোণিতপুৰৰ DTOৰ নামো আছে, আমাৰ শোণিতপুৰৰ DTOৰ নামো আছে অডিট ৰিপৰ্টত। আপুনি কি আছে, এইটো পাব্লিক ফোৰামত অপেন আছে। শোণিতপুৰ DTOৰ নামতো আছে যে ইমান টকা উঠোৱা নাই, আপোনাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কি নিদিয়ে অডিট ৰিপৰ্টত, যে আপুনি এইটো কৰিলে ভাল হ'ব। একশ্যন লয় কিন্তু সিহঁতৰ, যদি নহয় ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে। ছাছপেণ্ড কৰিলে কি হয় আপোনালোকৰ? আৰু এটা কথা, এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰৰ মাজত কথা কৈ আছিলোঁ বা MPA বিলাকৰ কথা। এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ বা MPA বিলাকৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন হয় ন, হয়তো 10 বছৰ 15 বছৰ লাগিব পাৰে প্ৰমোশ্যন হওঁতে, বাট সিহঁতে এটা কিন্তু সময় আহে যেতিয়া কোনোবা এজন যদি DTO কি কৰিলে ছাছপেণ্ড কৰি দিলে, তেখেতে ইনচাৰ্জ হিচাপে কিন্তু DTO ল'ব পাৰে। এই গ্ৰেজুৱেশ্যন লিষ্টখন মই চাইছিলোঁ, তাত DTO IC বুলি লিখা আছে, IOPC মানে ইনচাৰ্জ, DTO ইনচাৰ্জত পঠাব পাৰে তেখেতক, চাই লয় মানে ই কেনেকুৱা কৰিব DTO কৰি পেলাই। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু মানে জানিবলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনিৱেজ আকৌ আমি বেক টু টপিক। চ' আমি কি চাই আছোঁ, ৰিফৰ্মছ ইন ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া ৰিফৰ্মছখিনিৰ কথা যদি চাওঁ, ডেভিড স্কটে কি কৰিছিলে, প্ৰথম কথা যোনটো খেল ছিষ্টেম আছিলে, অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ মেডাইকালত যোনটো চলি আছিলে খেল ছিষ্টেম, ৰাইট। মই যে কৈছিলোঁ বেলেগ বেলেগ অকুপেশ্যনৰ হিচাপত খেল বেলেগ বেলেগ বনোৱা হয়, সেই খেল ছিষ্টেমটো কণ্টিনিউ কৰিব, ঠিক আছে, বাট ৰিপ্লেচ পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচেছ। যোনটো পাৰ্চনেল চিষ্টেম চাওক, খেল চিষ্টেমৰ লগতে কি আছে আপোনালোকৰ পাইক চিষ্টেমৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচ দিব লাগে ন, সেই পাৰ্চনেল চিষ্টেমটো বন্ধ কৰি দিয়ে ছাৰ্ভিচটো। যোনবিলাক আগতে পাই আছিলে, শইকীয়া বৰা হয়নে, সকলোৱে এনজয় কৰি আছিলে, পূৰা বাইকছ আছে 10টা 100টা, সেই ছাৰ্ভিচটো পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচটো বন্ধ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। নেক্সট জনাৰ্দন বৰুৱা এটা পোষ্ট বনালে, জনাৰ্দন বৰুৱা ৱাজ প্লেচড ইন চাৰ্জ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। জনাৰ্দন বৰুৱা বিকেম দ্য হেড অফ দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' নেক্সট কি হ'ল, লোৱাৰ আছামত যদি চাই, দ্য চাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ ৱাজ গিভেন টু দ্য চৌধুৰী। লোৱাৰ আছাম মানে আমাৰ গুৱাহাটী চাইডত যদি চাই, যোনখিনি চৌধুৰী চাৰ্টিফিকেট আছে, আজিও আছে বহুত মন্ত্ৰী কিবা, চৌধুৰীজ ৱেৰ ৰেভিনিউ কালেক্টৰ্ছ, ৰাইট। আজি চৌধুৰী, ঠিক আছে। চ' এই চৌধুৰীবিলাক কি আছিলে, দে ৱেৰ ইনচাৰ্জ। আজিৰ দিনত আপুনি ক'ব পাৰে চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে টাইপৰ, ৰেভিনিউ হেড হয় মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্কুল। চ' লোৱাৰ আছামত তেনেকুৱা আছিলে, ঠিক আছে। আৰু সিহঁতে যোনবিলাক সিহঁতৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিছিলে, সিহঁতে কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছিলে, পেৰা কাগজ বুলি কয়, ঠিক আছে। পেৰা কাগজ কি হয়, ৰেজিষ্টাৰ চাৰ্কুল। সিহঁতে এতিয়া আপুনি যদি এজন চাৰ্কুল অফিচাৰ হয়, আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যোনটো ৰেভিনিউ চাৰ্কুল হয়, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ক'ত ক'ত কিমান কিমান পইচা উঠিব পাৰে, তেতিয়া এটা কি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে। ছাৰ্ভে কৰি ৰিপৰ্টবিলাক টাইমলি জমা কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টক দি থাকিব লাগিব। একৰ্ডিংলি আপুনি তাত কিমান টেক্স উঠাইছে, যদি টেক্স উঠোৱা নাই কিয় উঠাব পৰা নাই, কি কি প্ৰব্লেম চলি আছে তাত, সেই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে ৰিপৰ্ট দিব লাগে চাৰ্কুল অফিচাৰ হিচাপে। চ' সিহঁতে সেইটো টাইমত চৌধুৰীবিলাকে পেৰা কাগজ মেইনটেইন কৰিছিল, ইজ এ ৰেজিষ্টাৰ অফ মেইনটেইনিং চাৰ্কুল, অ'কে। নেক্সট যদি চাই, again the Chaudharies while collecting the revenue were assisted by Patwari. Patwari এতিয়াও surname আছে, Patwari থাকে, মানে পাটোৱাৰীবিলাক কি হয়, একাউণ্টেণ্ট হয়। চৌধুৰীবিলাক চাৰ্কুল অফিচাৰ হ'ব পাৰে, পাটোৱাৰীবিলাক লক্ষণত হয়, ঠিক আছে। সিহঁতে কি হয়, একাউণ্টেণ্টছ হয়। আজিকালি লক্ষণ বুলি মানুহ হয় নাই, কণ্ডলবিলাক। চ' আৰু ঠাকুৰীয়াছ, যিবোৰ চাম অফিচাৰ্ছ টু এছিষ্টেড দ্য চৌধুৰীজ। চ' লোৱাৰ আছামৰ কথা কৈ আছোঁ দেই। এতিয়া লোৱাৰ আছামত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেভিনিউ অফিচাৰ কোন আছিলে, চৌধুৰী। চৌধুৰীবিলাকৰ তলত কোন আছিলে, পাটোৱাৰী আৰু কোন আছিলে, ঠাকুৰীয়াবিলাক আছিলে, ঠিক আছে।
তাৰপিছত চাৰ্জ অফ দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লোৱাৰ আছাম ৱাজ গিভেন টু এ চেৰিষ্টা দাস। ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাওক চৌধুৰী বহুতকেইটা থাকিব, চাৰ্কল হয়, বেলেগ বেলেগ চাৰ্কলত বেলেগ বেলেগ চৌধুৰী আছে, চৌধুৰীৰ তলত পাটোৱাৰী আৰু এইবিলাক আছে, ঠাকুৰীয়াবিলাক আছে, কিন্তু অভাৰঅল যোনটো চাৰ্জ হয় ন ইট ৱাজ গিভেন টু এ চেৰিষ্টা দাস। চেৰিষ্টা দাস আমাৰ এটা পষ্ট বনালে, ঠিক আছে। চেৰিষ্টা দাস চিষ্টেমটো আপুনি যদি চাই ইয়াত নাছিলে, এইটো বেংগলৰ পৰা আহিছে চিষ্টেমটো, কাৰণ ডেভিড স্কটে আগতে কি আছিলে গভৰ্ণৰ বেংগলৰ তলত চাৰ্ভ কৰিছিলে। চ' অবভিয়াছলি হি হেড দ্য আইডিয়া অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইচ ৱাজ গোয়িং অন ইন বেংগল। ডেট ইজ ৱাই তেখেতে কি কৰিলে, হি ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অফ চেৰিষ্টা দাস, ঠিক আছে। চ' চেৰিষ্টা দাস ৱাজ দ্য হেড অফ দ্য ইউ কেন চে ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' এনেকৈ এটা মনত ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই লওক, আটাইতকৈ ওপৰত কোন আছে, চেৰিষ্টা দাস আছে লোৱাৰ আছামত, তাৰ তলত কোন আহিব, চৌধুৰীবিলাক থাকিব, চৌধুৰী ৱাজ দ্য হেড অফ দ্য ৰেভিনিউ চাৰ্কল, আজিকালি চাৰ্কল যাক কওঁ, এই চৌধুৰীবিলাকৰ তলত পাটোৱাৰী আৰু আপোনাৰ ঠাকুৰীয়া থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক, নগাঁও এণ্ড ৰহা ৱাজ মেড এ ছেপাৰেট ৰেভিনিউ ইউনিট এণ্ড প্লেচড ইন চাৰ্জ অফ টু ফাৰ্মাৰ্ছ অফ দ্য ৰেভিনিউ, আৰাধন ৰায় আৰু পানীফুকন। দুজন মানুহ আছিলে, আৰাধন ৰায় আৰু পানীফুকন। নগাঁও আৰু আপোনাৰ যোনটো ৰহা হয় তাত বেচিকেলি আপুনি যদি চাই ন, নগাঁও ৰহাত আপুনি যদি চাই এনেকুৱা জেগাত আহিব লোৱাৰ আছাম আৰু আপাৰ আছামৰ মাজত পৰিব, বুজি পাইছে। কাৰণ আপাৰ আছাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছে, বিশ্বনাথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে গুৰি ডিঙি ৰিভাৰলৈকে, হয়নে, সেই এৰিয়াটো আপাৰ আছাম যদি বনাই দিয়ে। লোৱাৰ আছাম ষ্টাৰ্ট যদি আপুনি যদি চাই বিশ্বনাথ, যদি আপুনি চাই নগাঁও আৰু ৰহা এইটো নিকলাচন নকৰে জানো। চ' এইখিনিৰ পৰা এইটো চাইড যদি ৱেষ্টৰ পিনে যায় এইটো কি হ'ব, লোৱাৰ আছাম হৈ যাব। সেইকাৰণে মাজৰ যোনটো এৰিয়া আছিলে নগাঁও আৰু ৰহা, ইয়াত কি কৰিলে, ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ইহঁতে বাফাৰ জ'ন বনাই দিলে, কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰাখা নাই ডাইৰেক্টলি, ঠিক আছে। তাৰে যোন লোকেল মানুহ আছিলে, দুজন ফাৰ্মাৰ আছিলে, সিহঁতকে কি কৰিলে তাহাঁতৰ দায়িত্ব হয় নগাঁও ৰহা গোটেই টেক্সখিনি কালেক্ট কৰি আমাক দিলে, তাক দিব লোৱাৰ আছামত দিব। লোৱাৰ আছামত যোন লেখি আছিলে কাম গুৱাহাটীত ডেভিড স্কটক দিব, অ'কে। এতিয়া আমি চাওঁ আৰু কিছুমান, যেনেকৈ এ ছেপাৰেট ছেটেলমেণ্ট ৱাজ মেড উইথ ৰজা এজন আছিলে বিজয় নাৰায়ণ, দৰঙীয়া ৰজা যাক আমি কওঁ। চ' দৰঙীয়া ৰজাৰ লগতো এটা ছেপাৰেট ট্ৰিটি বনাই ল'লে আৰু ক'লে যে এইখিনি আমাক ট্ৰিবিউট দিয়ক। আৰু ট্ৰিবিউট চাওক কিমান আছিলে ৰেভিনিউ 42,000 ৰুপিজ, বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' দৰঙীয়া ৰজাও যদি আপুনি চাই চামৱে লোৱাৰ আছামৰ মাজতে আহে, মানে এতিয়া দৰং আৰু নগাঁও, শোণিতপুৰটো নাছিলে আগতে, দৰং বুলি কওঁ আমি গোটেইখন, আৰু নগাঁও আছিল, এই দুটা ৰাজ্য কি একদম মাজত পৰে। এইখিনি গ'লে আপোনাৰ বিশ্বনাথ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আপাৰ আছাম হৈ যাব, আৰু যদি এইপিনে চাই আপোনাৰ এইপিনে ৱেষ্টৰ পিনে গ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, লোৱাৰ আছাম হৈ যাব। সেইকাৰণে দৰঙীয়া ৰজাৰ লগত এটা ট্ৰিটি কৰিলে যে 42,000 আমি এইটো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ, আপোনাৰ চিষ্টেম ৰেভিনিউ চিষ্টেম আপুনি মেইনটেইন কৰক, আমাৰ চেৰিষ্টাৰ চিষ্টেম আপোনাৰ তাত মানে আমি দেখাটো আপোনালোকক নলগাওঁ, আপোনালোকে নিজৰ চিষ্টেম মেইনটেইন কৰক, বাছ আমাক 42,000 ৰুপিজ পাৰ ইয়াৰ ৰেভিনিউ হিচাপে দিয়ক, তেনেকৈ কালেক্ট কৰি চব কৰিব। আৰু মিডিল আছামত আমি নগাঁও আৰু ৰহা এৰিয়াত কি কৰিলে, দুজন ফাৰ্মাৰক দায়িত্ব দি দিলে, তেওঁলোকে পইচা উঠা, আমি জমিদাৰী চিষ্টেমত ঠাকুৰীয়া চিষ্টেম এইবিলাক নানো, বিকজ এইটো আমাৰ লোৱাৰ আছামত আছে। আপাৰ আছামতটো এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক আপাৰ আছামত কিয় অহা নাই, বিকজ আপাৰ আছামত আমি বেলেগকৈ পঢ়িম, এতিয়া তাতো এটা বেলেগ চিষ্টেম চলি আছে, ঠিক আছে। কিন্তু লোৱাৰ আছাম পূৰা ৱেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা বেংগলৰ যিটো চিষ্টেম চলি আছিলে, লোৱাৰ আছাম সেই চিষ্টেমটো লৈ গৈছিলে। নামবিলাক বেলেগ হয়, চৌধুৰী পাটোৱাৰী ঠাকুৰীয়া দি দিছে, বাট চিষ্টেমটো কিন্তু ৰেভিনিউ চিষ্টেমটো লোৱাৰ আছাম বেংগলৰ নিচিনা, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক আকৌ কোনটো থাকিলে, কিছুমান আপোনালোকৰ ট্ৰিবিউটৰী ৰুলাৰ চিষ্টেমত আছেনে, আহোমৰ টাইমত আমি যে কওঁ ৰজা অফ বেলতলা, ৰজা অফ ৰাণী, ৰজা অফ ডিমৰুৱা, ৰজা অফ নদুৱাৰ, ঠিক আছে। এইবিলাক ৰজাকো কি কৰিলে, কৈ দিলে ইউ হেভ টু একচেপ্ট আৰ বডি। সেই অসমে যদি একচেপ্ট কৰিছে আপোনালোক কোন হয়, ট্ৰিবিউটৰী ৰুলাৰ্ছে আছিলে আহোমৰ তলত, আহোমে নিজে আমাৰ তলত আছে। চ' সিহঁতক কি কৰিলে, নিজৰ ব্ৰিটিছৰ মানে যোনটো আধিপত্য হৈ গ'ল একচেপ্ট কৰি লওক। চ' ইউ হেভ টু একচেপ্ট আৱাৰ sovereignty and voluntarily you have to help us. So मुझे पैसे नहीं पता तो ये will just made it buffer zone. So अभी देखिए जो कंप्लीटली ब्रिटिश का दिमाग था वो कैसा था, एक तो लोअर असम है, लोअर असम में पूरा बढ़िया से 26 परगना वाला जो सिस्टम था जो वेस्ट बंगाल में चल रहा था, ठीक है, वो सिस्टम लोअर असम में लेके आए। मिडिल असम में उन्होंने क्या किया, एक बफर जोन क्रिएट किया, जो ट्रिब्यूटरी रूलर्स थे आपके, ठीक है, दरमिया वाला, उनको ये बनाया ट्रिब्यूटरी रूलर्स, मतलब ये आपने पपेट किंग्स बना दिया। जो नौगांव और रोहा वाले एरिया है उसमें फार्मर्स को लगा दिया रेवेन्यू कलेक्टर, और जो आपके दौड़ में थे, दौड़ में भी देखा था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे राइट, ओके, हाँ, दौड़ का जो राजा था विजय नारायण, उनको भी ट्रिब्यूटरी रूलर बना दिया। तो सब बीच में बफर जोन बना दिया। उसके बाद अगर आप अपर असम में जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या चंद्रकांत किंगडम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनको पपेट किंग बना के उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो 3 टाइप ऑफ सिस्टम चल रहा है ब्रिटिश का रेवेन्यू के टाइम से, मतलब रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए।
Now we will see the different types of tax which were imposed in Lower Assam. ठीक है, पहला देखिए गाधन, आपको पता ही है पाइप सिस्टम में गाधन हमने देखा था। गाधन क्या होता है? बॉडी टैक्स। हर एक एबल बॉडी मेंबर को 2 रुपया, मैंने बोला था ना, हम के टाइम पे कितना था वो गाधन 1 टका था, इन्होंने बढ़ा दिया था, देखिए 2 रुपया कर दिया। गाधन जो है हम के टाइम से ही टैक्स चल रहा था पाइप सिस्टम के अंदर, अभी ये क्या 1 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि लोगों का इनकम भी बढ़ रहा था उस हिसाब से, तो टैक्स भी बढ़ता है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स इसको भी बोलते हैं, जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो इन्होंने क्या किया, गाधन शुरू कर दिया। गाधन कितना है? हर एक मतलब देखो गाधन क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, इट्स बॉडी टैक्स। जैसे आप 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आप लोग के बीच आपके घर से 2 रुपया जाना पड़ेगा हर एक मेंबर को। अभी आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा आपके घर से, टैक्स पर हेड 2 रुपये। इसलिए गाँव मतलब बॉडी होता है, बॉडी टैक्स। गाधन मतलब क्या होता है? बॉडी टैक्स। सो ईच मेंबर हैड टू पे 2 रुपीज़, वो कंपल्सरी कर दिया लोअर असम में। इन रिटर्न ऑफ विच एवरी पाइप्स वर एंटाइटल्ड टू एंजॉय 3 पुरास ऑफ एरेबल लैंड। देखिए एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, वो क्या है? एरेबल लैंड तो मिल गया, लेकिन पहले आपको एरेबल लैंड के साथ काम भी करना पड़ता था, पर्सनल सर्विस। वो पर्सनल सर्विस नहीं है अभी। सो एवरीवन वाज हैप्पी एक्चुअली, देखा जाए तो उनको डू ट्रेड बट वी आर स्टिल हैप्पी, राइट। उनको लगा चलो पहले हमको 1 रुपया देते थे गाधन, लेकिन उनके लिए बहुत काम करना, बहुत खटनी करना पड़ा, 3-4 महीने हमको जाना पड़ता था उनके के अंदर जाके, या खेत के अंदर काम करना पड़ता था। अभी हम वो सब नहीं करेंगे, अपने को मुझे ज़मीन मिल जाएगा, मैं ज़मीन में अपना खेती बाड़ी करूँगा, 1 रुपये क्या मैं 10 रुपये कमा लूँगा साल में, जिसको 1 रुपये ही तो देना है, वो सोच रहे, ठीक है। फिर देखिए इन कामों पे न्यू टैक्स, अभी कहाँ रुकने वाले हैं ब्रिटिशर्स, एक टैक्स थोड़ी लगाएंगे गाधन लोग पे, उनको भी पता है कि और उनको एक्सपोज करना है और पैसा निकालना है। कानून में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है खोड़ी खतरना टैक्स और पोल टैक्स, एंड वाज एक्सटेंडेड टू नौगांव एंड डोरम। अभी पोल टैक्स हमने पढ़ा था पहले, इफ यू रिमेंबर। पोल टैक्स क्या होता है? सपोज अभी आप एक ट्रेडर हो, आप खेती कर रहे हो, ठीक है, खेती कर एग्रीकल्चर, फिर आप क्या करोगे? आप ट्रेडर के हिसाब से भी काम करोगे, आप अपना जो चीज़ें हैं हार्वेस्ट उसको ले जाओगे ना दूसरी जगह बेचने के लिए मंडी में, तो मार्केट में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप मान लो आप ऐसे एरिया में हो जिसमें क्या 2 प्रोविंसेस आते हैं अलग अलग, तो आपको बॉर्डर भी पार करना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे द पोल टैक्स। पोल टैक्स सेम थिंग, ओके। फिर द सेम वाज कलेक्टेड एज प्लाउ टैक्स इन कांगड़ी। अभी वही नाम प्लाउ टैक्स का दे दिया। एक खटनिया टैक्स क्या होता है? खटनी करने वाला टैक्स है, जो आपको क्रॉस कर बॉर्डर प्रोविंस क्रॉस करने में देना पड़ेगा। जो आपके प्लाउ टैक्स है वो भी सेम ही है, ठीक है। खेती आपने किया, आपको वो भी पैसा फिर देना पड़ेगा, खेती में भी देना पड़ेगा। देखिए बेचने में तो देना पड़ेगा ही, बाजार में देना पड़ेगा, तो सेम सिस्टम हम वही है। देखिए बाजार में हाथ टैक्स होता था ना, हाथ क्वार्ट बोलते थे हम लोग, तो वो टैक्स देना पड़ेगा। जब आप बाजार जा रहे हो मतलब अगर कोई चेक पोस्ट कर गया वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। खेती जो कर रहे हो आपको 2 पूरा माटी दिया ना ब्रिटिश ने, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, वो कामरूप में लगता था, ठीक है। और एक जुहाल टैक्स आपको बताइए, हर टैक्स को कामरूप में दौड़ में लगाया था। और कैपिटेशन टैक्स एक था नौगांव में। सो जगह जगह लेके अलग अलग टैक्स लगाया था, ऐसा नहीं सारा टैक्स देना पड़ेगा। कामरूप में ये सिस्टम चल रहा था क्योंकि कामरूप में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टोल टैक्स लगा दिया। अगर आप देखोगे कामरूप में खेती भी ज़्यादा होता था, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा एक टैक्स लगा दिया विच इज नोन एज प्लाउ टैक्स। खेती में टैक्स देना पड़ेगा। नौगांव डोरम में अगर जाओगे, डोरम में उन्होंने देखा कि क्या होता है, लोग मतलब हो सकता है कुछ ट्रेडिशन हो उनका, शादी होने के बाद क्या सेपरेट हो जाते हैं लोग, तो एक चूल्हा जो होता है ना, 2 चूल्हा, हस्बैंड वाइफ नया चूल्हा बना लेंगे ना, वो लोग अपना खुद का पाखड़ होगा, सेपरेटली बनाएंगे खाना, तो उनके भी क्या होता था, हर टैक्स लगा देते थे। जुहल टैक्स बोलते, जुहल मतलब जहाँ पे हम आग पकड़ते हैं, राइट। सो और दूसरा क्या होता है, और नौगांव में क्या लगा है, कैपिटेशन टैक्स। इतने सारे टैक्स लगा है। बिसाइड दैट द रेंट फ्री लैंड पे बहुत अगर पहले आपको पता है ना, ये जो पाइप सिस्टम में पाइप ऑफिसर्स होते थे, राइट, बड़ा सैकियन और हजरीगा कौन, ठीक है, सबको क्या लैंड फ्री टैक्स मिलता था ना, फ्री टैक्सेशन लैंड मिलता था। ये सारे अभी टैक्सेबल हो गए, वो ऑफिसर्स भी अभी, तो क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा ही नहीं ना पाइप ऑफिसर्स वाला। अभी देखिए और कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस थे जैसे जो प्रोफेशनल्स में लगाए गए थे, यू नो, हम में भी ये होता था, गोल्ड वॉशिंग का, फिशरमैन का, डाइवर्टर का भी टैक्स लगाते थे, राइट। सो दिस वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच वर प्रिवेलेंट इन लोअर असम, ठीक है। अभी हम देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स में अगर देखोगे, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट लोअर असम, यू
असम पे अपर असम भी थोड़ा चेंजेस किया उन्होंने, इसलिए जहाँ पे अपर असम का चेंज हुआ है वहाँ पे मैंने लाया है। आपने टैक्स के बारे में अपर असम का नहीं पढ़ा है यहाँ पे। रीजन, अपर असम में चंद्रकांत किंग अपना ही टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था विच इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि चंद्रकांत किंग कुछ साल के लिए ही रहते हैं एज ए किंग, और उनको बनाते भी इसलिए ताकि वो कुछ साल ही टिक पाए, ठीक है। उसके बाद उनको भी रिलीज किया जाता है 1838 में। 1828 में लोअर असम को एनेक्स कर दिया, 38 में अपर असम को भी एनेक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, एनीवेज जुडिशियल रिफॉर्म्स हम देखते हैं, पहले लोअर असम फिर अपर असम। जुडिशियल डिपार्टमेंट में अगर देखोगे तो डेविड स्कॉट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाया। पहले देखो आप लोग, लोअर असम में क्या था, हेड ऑफ द खेल्स एंड परगनास, ठीक है, परगनास के हेड को क्या चौधरी बनाया था, राइट। सो हेड ऑफ द खेल्स, खेल सिस्टम के जो खेल्स है और जो परगना सिस्टम के जो हेड थे चौधरीज, उनको क्या दे वे ऑथराइज्ड टू डिसाइड द माइनर केसेस विद द हेल्प ऑफ मेल्स और पंचायत। वो लोग क्या करते थे, पंचायत का बैठक बोलते थे, बुलाते थे, जिसको मेल भी बोलते हैं, आजकल भी बोलते हैं ना मेल का कुछ है, राइट। सो मेल बनाते थे और छोटे छोटे अगर केसेस, चोरी चक्का कुछ हो गया छोटा मोटा, ठीक है, सो वो लोग उससे डील करते थे। लोअर असम में ए सीनियर कमिश्नर वाज गिवन, मतलब सीनियर कमिश्नर कौन है, ऑब्वियसली डेविड स्कॉट है। ही हिमसेल्फ हैड गिवन द पावर टू हिमसेल्फ कि मैं आज से सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस देखूंगा। 3 कोर्ट्स वे एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर द सिविल केसेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे हमारे हैं, लोअर असम में 3 कोर्ट बनाया गया था डिफरेंट केसेस, ठीक है। और 1828 की बात है कि एक पंचायत जिसका नाम है बार पंचायत, उसको बनाया गया था। बार पंचायत क्या होता था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 3 लोकल जजेस, 2 पंडित्स एंड 6 यू कैन से एसेसर्स, जो आप बोल सकते हो लाइक कोऑर्डिनेटर बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन क्या था, 3 लोकल जजेस थे। अभी देखिए, अब फिर से बताता हूँ, लोअर असम में क्या था, छोटे मोटे अगर केसेस होंगे इट विल बी रूल्ड बाय द चौधरीज एंड द खेलदार्स। हेड ऑफ द खेल वाज द खेलदार होते हैं ना, इसको मैंने लिखा नहीं है, आपको याद होगा शायद, पहले हमने खेलदार के बारे में पढ़ा है। हेड ऑफ द खेल वाज नोन एज वन खेलदार और खेल ऑफिसर, जैसे लिखा हुआ था पहले साइड में देखो। खेलदार हेड था और परगनास की जो हेड है लोअर असम की चौधरीज, दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द छोटे मोटे जो केसेस थे, लेकिन वो खुद के पास उनका पावर नहीं था। दे हैड टू कॉल द पंचायत एंड सेटल मेल करना पड़ता था, मीटिंग करना पड़ता था, उसके बाद ही डिसीजन होता था, ठीक है। और जो भी मतलब सिविल क्रिमिनल केसेस हो, उसका जो मेन यू कैन से हाई कोर्ट जो था, हाई कोर्ट का चार्ज कौन था, इट वाज द सीनियर कमिश्नर। डेविड स्कॉट खुद ही हाई कोर्ट के जज थे वहाँ पे, ठीक है। और भी छोटी छोटी कोर्ट्स कुछ बनाए गए, 3 सिविल कोर्ट्स और एक बार पंचायत भी बनाया गया। हर पंचायत में लोअर असम में क्या था, एक बार पंचायत बोलते थे, ठीक है। सपोज आप मान लो पहले जो भी केसेस होगा ना, छोटी मोटी केसेस होगा ना, बार पंचायत के पास ही जाता था। बार पंचायत में लोकल जजेस किसी को बना दिया, जैसे आप चलो इस गांव से हो, एक मेंबर, आज से आप 3 जज हो, यहाँ पे आप देखो क्या क्या चल रहा है, यू डिसाइड। और आपका अगर ये जजमेंट उनको पसंद नहीं हो रहा था, देन दे यूज्ड टू गो टू द खेलदार्स और द चौधरीज, और उनका भी वर्डिक्ट पसंद नहीं है, देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स। अगर कोर्ट का भी पसंद नहीं है, देन यू हैव टू गो टू द लोअर कमिश्नर, सीनियर कमिश्नर जो था, उनके पास कभी फाइनल ऑथोरिटी उनके पास था। अगर उनके वर्डिक्ट से भी आप खुश नहीं हो, वो तो गवर्नर जनरल बेंगल में बैठा हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल 1826 में, कौन था, एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट, दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, राइट। सो एमहर्स्ट के पास जाना पड़ेगा, और उसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि बाकी उस टाइम पे कंपनी रूल चल रहा था, राइट। 1826 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग। 1850 के बाद ही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो है ना, ग्रिप बढ़ता है, क्योंकि क्वीन घुस जाती है ना उस टाइम पे। अब तक क्वीन ने इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बोलेगा दैट विल बी द फाइनल अथॉरिटी। बट इतना पैसा होगा कि आपके पास फाइट करने के लिए केस गवर्नर जनरल तक जाने का, या दिल्ली में जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो 17th सेंचुरी में तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वहाँ पे जाओगे क्या केस फाइट करने के लिए, फ्रेंड्स ऑर्डिनरी मैन, राइट। सोच ही नहीं सकते हम लोग। सो ज़्यादातर केसेस आपके बार पंचायत में सॉल्व हो जाते हैं, या मैक्सिमम आप बोल सकते हो आपके पास पैसा है तो थोड़ा खेलदार या चौधरी, सभी चौधरी के पास जाके लाओगे, वो लात मार के भगा देगा, पैसा तो पहले फिर हम केस फाइट करेंगे, आप सुनेंगे तुम्हारी बात, ऐसा एटीट्यूड होगा ना, तो पैसे चाहिए। अपर असम में क्या होता है, देखो अभी असम, अपर असम का थोड़ा डिफरेंट है। अपर असम में जो आपके सिविल केसेस है, इट वाज लुक्ड बाय पर्सन नोन एज डोंगुडर बॉर्फुकन, ठीक है। डोंगुडर बॉर्फुकन वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द केसेस इन अपर असम, लेकिन सिविल केसेस, ठीक है। डोंगुडर बॉर्फुकन वाज असिस्टेड बाय को एजेंट मतलब को जज भी बोल सकते हो, असिस्टेंट बोल सकते हो, उनका नाम क्या था, जोनाथन बॉर्फुकन। सो लोअर असम में आप देखो अभी केसेस 2 टाइप के होते हैं, नेचर की क्रिमिनल, एक सिविल। सिविल केसेस होगा, उसका हेड अपर असम में कौन देखता था, डोंगुडर बॉर्फुकन। डोंगुडर बॉर्फुकन के नीचे एक ऑफिसर आप बोल सकते हो, को एजेंट, वाज जोनाथन बॉर्फुकन, ठीक है। नाउ
दिस वेर अबाउट द सिविल केसेस। अगर क्रिमिनल केसेस के बारे में देखेंगे अपर आसम में, तो क्या था, क्रिमिनल केसेस में ट्राइड बाय जूनियर कमिश्नर। जूनियर कमिश्नर मतलब कौन, अभी हमने देखा था ना, कौन था डेविड स्कॉट के साथ, राइट, रिचर्ड्स। तो रिचर्ड उस टाइम मतलब उन्होंने रिचर्ड का नाम नहीं लिखा बिकॉज जूनियर कमिश्नर बोल रहे, मतलब आगे भी तो आएगा ना, दूसरे भी लोअर कमिश्नर्स आएंगे, जूनियर कमिश्नर्स आएंगे अपर आसम में। तो जूनियर कमिश्नर जो भी होगा ही विल बी द हेड ऑफ द क्रिमिनल केसेस, उनका टाइटल होगा। एंड आफ्टर 1828 जो था ये चीज़ चेंज हो गया। पहले 1828 से पहले तक क्या होता था, कॉलोनल रिचर्ड्स हो गया, जूनियर कमिश्नर जो होगा अपर आसम में, ही यूज्ड टू बी द हेड हू यूज्ड टू लुक आफ्टर द क्रिमिनल केसेस। बट ये सिस्टम चेंज करके 1828 में क्या हुआ, जूनियर कमिश्नर की जगह पॉलिटिकल एजेंट देखिएगा, ठीक है। Walpurgis was entrusted to pass sentences and heinous crimes were judged by juries with the help of Walpurgis president. Walpurgis जो था, Walpurgis के बारे में बोलते हैं, अगर कोई भी क्राइम्स होता है, ठीक है, सिविल केसेस में भी हेनस क्राइम्स होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस सब कुछ जैसे हेनियस क्राइम, ऐसे अगर क्राइम्स होंगे देन वो, अगर देखिए नॉर्मल क्राइम होता है तो क्या होगा, सिविल अगर सिविल नेचर का है, ठीक है, क्राइम नहीं बोल सकते आप, केस बोल सकते, ठीक है। अगर नॉर्मल केस है दैट इज टू बी लुक्ड आफ्टर द जोनाथन बॉर्डर, ठीक है। बट अगर हेनियस हो गया, मतलब उसके वजह से अगर सपोज मान लो माटी की वजह से, लैंड डिस्प्यूट की वजह से किसका मर्डर हो गया, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जोनाथन बॉर्डर क्या करेगा, ही वाज इंटरेस्टेड विद सीइंग द केसेस, पर वो अकेले नहीं देख सकता था, ही यूज्ड टू बी अकम्पनीड बाय जूरी, बहुत सारे लोग रहेंगे उनके साथ और जजेस रहेंगे, छोटे मोटे जजेस, जूनियर जजेस, वो बॉर्डर को असिस्ट करता था, ठीक है। और बॉर्डर के अगर वर्डिंग से इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैन गो टू कॉलोनल रिचर्ड्स, दैट इज जूनियर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये किसका सिस्टम था, अपर असम का सिस्टम था, दिस इज लोअर असम, ठीक है। तो ऑफिसर्स कौन कौन थे जुडिशियल रिफॉर्म्स में लोअर असम में, इट वॉज द खेलदार। पहले अगर सबसे छोटा देखोगे बार पंचायत था, एकदम याद रखो, ये मैंने सिस्टमेटिकली नहीं लिखा है पर दिमाग में याद रख लो, सबसे छोटा था बार पंचायत। पहले आप अपील करोगे बार पंचायत के पास, बार पंचायत के पास किसके पास जाना, फिर नेक्स्ट किसके पास अपील करोगे, यू हैव टू गो टू द खेलदार सेंटर चौधरीज, ठीक है। खेलदार सेंटर चौधरीज से अगर आप हैप्पी नहीं हो देन यू हैव टू गो टू द 3 कोर्ट्स, जो 3 कोर्ट एस्टेब्लिश है, 3 ही कोर्ट है लोअर असम में, उनमें किसी एक कोर्ट में आप दे दो। अगर 3 कोर्ट्स में भी आप इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर, और एक चीज़ याद रखो, दिस इज फॉर द सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 3 कोर्ट्स में जाओगे, अगर 3 कोर्ट्स के डिसीजन में भी आप लोग क्या हैप्पी नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिंग, देन यू हैव टू गो टू द लोअर कमिश्नर, तभी आप डेविड स्कॉट के पास जाओगे। दिस वाज द क्रोनोलॉजी ऑफ सिविल केसेस। अगर क्रिमिनल केस है चलेगा डायरेक्टली डेविड स्कॉट के पास, ओके, राइट। अपर असम में क्या था, जो सिविल केसेस है यूजुअली इट वाज डेल्ट बाय लंबोदर बॉर्डर, और लंबोदर बॉर्डर को जोनाथन बॉर्डर असिस्ट करता था, ठीक है, एकदम छोटा पहला। उसके बाद अगर आप उनके डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, यू गो टू द जूनियर कमिश्नर, ठीक है, दैट इज कॉलोनल रिचर्ड्स के पास आप चले जाओ, ठीक है, फॉर सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस अगर सिंपल है, ठीक है, तो वो क्या होता था, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्रिमिनल केसेस अगर सिंपल है देन यू हैव टू गो टू कॉलोनल रिचर्ड्स, ओके। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो पहले दो लेयरिंग चेकिंग होता था। पहले केस में आप जोनाथन बॉर्डर देखेगा, उसके बाद लंबोदर बॉर्डर देखेगा, उसके बाद ही अगर हेनियस टाइप का होगा, क्रिमिनल केसेस में भी 2 टाइप होते हैं ना, सिंपल टाइप होने से आप लोअर कमिश्नर के पास जाओ, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप होगा तो फर्स्ट लेयर चेक किसके पास जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द लंबोदर बॉर्डर। अगर लंबोदर बॉर्डर से भी आप हैप्पी नहीं हो देन यू हैव टू गो टू द जूनियर कमिश्नर, इट इज रिचर्ड्स के पास जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो चीज़ों को ठीक तरह से समझ लेना, क्योंकि हम पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना आपको। और क्रिमिनल सिविल केसेस में क्या होता है लोअर असम में, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है लोअर असम में, सिविल केसेस में क्या होता है अपर असम में, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है अपर असम में, ठीक है, ऐसे बना लेना चाहिए। लास्ट आज का स्लाइड है पुलिस रिफॉर्म। तो यहाँ पे देखो, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या चाहिए हमको, जुडिशरी तो है बट पुलिस भी तो चाहिए ना। सो डेविड स्कॉट इंट्रोड्यूस सम सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स इन पुलिस डिपार्टमेंट। सो जैसे देखो पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन थे, एक दारोगा था, जामादार, अभी भी कुछ पोस्ट है, नाम आप सुनोगे पुराने नाम, और फनी होता है ना जामादार, और फ्यू कॉन्स्टेबल्स मेंटेन द हेडक्वार्टर्स अंडर ब्रिटिश सुपरविजन। तो क्या होता था, एक पुलिस स्टेशन होगा मान लो, वहाँ पे हेड जो होगा ओसी, ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। ओसी कौन हो, अच्छा ओसी के बारे में थोड़ा मुझे बताओ, तो पता है अभी ओसी
ओसी का रैंक क्या होता है? वो तो एक नाम हो गया ना ऑफिसर इंचार्ज, रैंक भी होता है। मान लो एक इंस्पेक्टर, किसी हर एक थाने में इंस्पेक्टर नहीं होता है, राइट? उस टाइम पे क्या होता है? ओसी इज द इंचार्ज ऑफ द, नाम क्या है? ऑफिसर इंचार्ज, मतलब इंचार्ज ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है? हर एक थाने में पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता है, याद रखना। सो ओसी विल टेक इंचार्ज ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर। ओसी के नीचे आपके एसआई रहेंगे, सब इंस्पेक्टर्स। उसके बाद क्या होता है? कांस्टेबल्स रहते हैं, राइट? फिर हवलदार, राइट? सो पहले अभी आप एंटर करोगे, यू वांट टू गो टू पुलिस, अगर आप रनिंग अभी ये बोलो कहीं पे हो रहा था ना रिक्रूटमेंट यहाँ पे ना, कब होगा ये? पोस्टपोन कर दिया ना परीक्षा वजह से। सो ये आई थिंक 28 को होगा या कभी 10-20 दिन पोस्टपोन कर दिया है। तो वो पहले अगर जाओगे तो वो हवलदार का क्योंकि कांस्टेबल का होगा, पहले कांस्टेबल का है ना, तो कांस्टेबल का होगा, ठीक है? अभी कांस्टेबल का होगा, फिर आपको कुछ साल रुकना पड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है? अभी यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी एक सिस्टम चल रहा है। दरोगा जो है, पहले इंस्पेक्टर आप बोल सकते हो, इंस्पेक्टर या ओसी बोल सकते हो। उसके बाद जमादार आता है, जमादार होता है ऐसा है, जैसे मान लो, और कांस्टेबल सही है उसके नीचे। फिर हवलदार भी थे, बट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, कांस्टेबल के बाद हवलदार से, ठीक है? अभी हवलदार कांस्टेबल में क्या डिफरेंस है? हवलदार कांस्टेबल आप मान लो ग्रेड क्लर्क्स, क्लरिकल कैडर का होता है, ग्रेड 3। हवलदार ग्रेड 4 के है। कुछ भी किसी को पकड़ना है, किसी को मतलब लाना है, कुछ अरेस्ट करना है, तो किसी हवलदार को भी कुछ ऑर्डर्स पास करने हैं, कुछ मैसेज देना है किसी में, है ना? कांस्टेबल्स क्या करते हैं? दे यूज टू सिट, दे विल सिट। आप देखना कांस्टेबल्स बैठे रहेंगे। आप जो एफआईआर लिखाने जाओगे, राइट, कांस्टेबल विल ड्राइव यूजुअली। आप अगर डायरेक्टली एसआई के पास जाओगे, वो बोलेगा वहाँ पे रिपोर्ट लिखेगा, कांस्टेबल के पास मिलेगा। कांस्टेबल्स आर लाइक ग्रेड 3, बड़ा बाबू, ठीक है? तो बड़ा बाबू होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं। फिर एसआई का भी इन्वॉल्व होता है, जैसे एक एसआई को कहीं पे कुछ रेड करना है या कुछ, देन दे विल टेक सब दूसरे कांस्टेबल्स एंड 5-6 हवलदार्स, ओके, पार्टी बना के जाते हैं। और बाकी तो हर एक थाना में आपको पता ही है, उसी टेक्स इंचार्ज का इंस्पेक्टर नहीं है। और पुलिस में अगर देखोगे, आपके इंस्पेक्टर रहते हैं। इंस्पेक्टर के ऊपर कौन रहेगा डिस्ट्रिक्ट में? एसपी मतलब डीएसपी आएगा पहले, डीएसपी के बाद एसपी, एसपी के बाद क्या आता है? डीआईजी, एसएसपी आता है, सीनियर एसपी होता है। सीनियर एसपी 2-3 डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, ठीक है? जैसे कोई डीसी में भी ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सिस्टम में डीडीसी होती है, राइट, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। वो क्या होता है? डिवीजन का हेड होता है। मैंने पहले आपको ज्योग्राफी में एक नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन पढ़ाया था, याद है? सो डिविजनल डीसी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वो क्या करता है? सपोज मान लो नॉर्थ डिवीजन का वो डिस्ट्रिक्ट डीडीसी है, देन ही विल बी इन चार्ज ऑफ ऑल द 5 or 6 जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है डिवीजन, वो सारे जिला का वो क्या होगा? ही विल बी द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे ये सारे सिस्टम्स याद रखो, इम्पोर्टेंट। अभी नया सिस्टम आया ना, डिस्ट्रिक्ट के नीचे 2 डिस्ट्रिक्ट होगा, पहले सब डिविजन होता था। अभी मैं कल के परसों एक वीडियो बनाया, मुझे ऐसा लगा देयर विल बी सम क्लैशेस, यू नो, क्यों? पहले सब डिविजन का हेड कौन था? एसडीओ था। एसडीओ फॉरवर्ड बोलते हैं, एसडीओ सिविल बोलते हैं, इंग्लिश में सिविल लिखते हैं, असम में फॉरवर्ड लिखते हैं, राइट? सो अगर आप देखोगे एसडीओ का जो रोल है वो अभी क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया ना। पहले सब डिविजन एसडीओ यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द सब डिविजन, अभी सब डिविजन को चेंज करके क्या बना दिया? 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिया, उसका हेड को नाम दे दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। वही आपके एडीसी के लोग रहेंगे, होगा तो एडीसी, बट वो जब उस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, राइट? तो अभी एसडीओ का काम क्या है? एसडीओ को सबऑर्डिनेट बना दिया, क्योंकि दोनों ना ऐसे भी एडीसी के अंदर ही था एसडीओ, ठीक है? अगर लेकिन डिफरेंस था, एडीसी में क्या होता है कि एडीसी में आपको डिपार्टमेंट वाइज किया जाता है। अब एडीसी रेवेन्यू, एडीसी होम, एडीसी पॉलिटिकल, एडीसी होमगार्ड्स, कुछ भी हो, ठीक है? हर एक चीज़ का अलग अलग, सिविल डिफेंस बोलते हैं, सिविल डिफेंस के अंदर आएगा। सो हर एक एडीसी डिपार्टमेंट अलग अलग रहता था, डीसी क्योंकि सारा नहीं लिख सकता। फिर एसडीओ लेकिन एडीसी के बराबर ही है, क्यों पता है? क्योंकि एडीसी क्या होता था? यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एसडीओ यूज्ड टू बी द हेड ऑफ दैट सब डिवीजन रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। तो पावर सेम ही था उनका, लेकिन अभी जो कि हेड बना दिया गया ना सब, आई मीन इसका को डिस्ट्रिक्ट का एडीसी को, तो एसडीओ का पावर अभी
सबोर्डिनेट होते हैं पहले ऑलमोस्ट। हाँ होता है, लेकिन अभी पावर का जो अभी और एक चीज़ क्या प्रॉब्लम है पता है, डिस्ट्रिक्ट में अभी ये मार्केट नहीं किया गया है, रोल क्या है इसका, ठीक है। ये सम द प्रॉब्लम्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट। बना तो दिया लेकिन कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉज नहीं है कि इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है, नथिंग इज बीइंग लेजिस्लेटेड। और एक प्रॉब्लम क्या आ गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर देखो पहले क्या होता था, सारी कैबिनेट की मीटिंग्स डीसी ऑफिस में होता था, राइट, कॉन्फ्रेंस रूम में होता था। अभी क्या किया, जब से ये गार्जियन मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट आया, नाउ द गार्जियन मिनिस्टर्स विल टेक चार्ज ऑफ द फोर डिस्ट्रिक्ट्स, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा ही ना। मैं अभी अगर सीएम हूँ, मैं अब चारों मिनिस्टर्स हो, गार्जियन मिनिस्टर चारों डिस्ट्रिक्ट का, मुझे अपना एजेंडा जो फुलफिल करना है, इफ आई हैव समथिंग इन माई माइंड देन ऑब्वियसली इट्स ए गुड थिंग, बट इंटरफेरेंस होगा। मैं अब चारों के थ्रू उस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करूँगा, फोर डिस्ट्रिक्ट में, समझ में आया है ना। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है, और क्लैशेस भी होगा, राइट, क्लैशेस हो गई, क्योंकि एसडीओ एक बोलेगा, पुलिस की कमिश्नर एक बोलेगा, और जो आपके पॉलिटिकल मतलब ये है गार्जियन मिनिस्टर है वो एक चीज़ बोलेगा, ठीक है। एमएलए और एमपी भी वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ अभी एमएलए एमपी अगर दूसरे पार्टी का हो गया, समझ में आ रहा है ना, सेम पार्टी होने से अलाइनमेंट सेम होता है, ठीक होगा, बट नाउ द थिंग्स विल बी डिफरेंट, ओके। सो समझ में आया। अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा था कि दरोगा, उसके बाद जमादार, फिर कॉन्स्टेबल्स, फिर अगर आप देखोगे ऑन द अदर हैंड द मोफुसिल पुलिस में अंडर द चार्ज ऑफ द लोकल चीफ्स एंड द रेवेन्यू ऑफिसर्स। अभी मोफुसिल पुलिस क्या है, मोफुसिल पुलिस जो होता है ना, यू कैन से दे आर लाइक, आप बोल सकते हो जो हमारे क्या है रेवेन्यू के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, दे आर नोन एज मोफुसिल। सो दे विल इन चार्ज ऑफ लोकल पुलिस। अभी रेवेन्यू के ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, समझ में आ रहा है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो आता है आपका यूनियन कॉन्ट्रैक्ट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या आता है, ईडी आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है कि नहीं। वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर डिफरेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी होते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनको हेल्प करते हैं, राइट। सो आप बोल सकते हो दीज आर सिविल एंड क्रिमिनल पुलिस, दिस इज रेवेन्यू पुलिस, आप बोल सकते हो। इसमें कैसा सीबीआई बोल सकते हो, सीबीआई टेक्स चार्ज, लेकिन सीबीआई का थोड़ा रोल डिफरेंट है, करप्शन से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, करप्शन वाले केस देखते हैं। ईडी क्या देखता है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, वो सब देखते हैं। सीबीआई करप्शन से रिलेटेड चीज़ें देखता है। अगर नार्कोटिक्स घुस गया करप्शन और रेवेन्यू के साथ, तो एनसीबी देखता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, अलग अलग है। सो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में दरोगा, जमादार, कांस्टेबल्स थे और हवलदार थे, और रेवेन्यू पुलिस में मोफुसिल पुलिस थे, दे वर असिस्टेड बाय द लोकल चीफ्स एंड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ठीक है। सो दिस वाज द पुलिस रिफॉर्म जो स्टार्टिंग फेज में मॉडर्न असम में हो रहा था, स्टेटिक स्पॉट के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से अगर देखोगे डेवलपमेंट्स पोस्ट 1826, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एंटायर असम। अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। ये क्या था, पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खत्म हो गया आज हमारे। हमने क्या क्या देखा, एंशिएंट का देखा, मेडाइवल का देखा, मॉडर्न का देखा, रेविक्स के टाइम पे। यहाँ से क्या होगा, वी आर एंटरिंग मॉडर्न असम हिस्ट्री। 1826 से शुरू होता है, मैंने बोला था ना पहले आपको, मेडाइवल। सो मेडाइवल खत्म होता है 1826 में, 1826 के 24 फरवरी जो डेट है, याद रखो, उसके सेकेंड डे से, अब मान लो 25 मान लो 25 फरवरी 1826 से, यस, ट्रीटी ऑफ याद रखोगे, नेक्स्ट डे की बात है, पर उस दिन से ही आप मान लो मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है, मॉडर्न असम हिस्ट्री। सो ये पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नाउ वी हैव एंटर्ड द, अभी हम लोग ऑफिशियली मॉडर्न असम हिस्ट्री एंटर कर चुके हैं। असम में एक गैप था उस टाइम पे 1832 तक, ठीक है, 1826 से लेके, हाँ, सो उस टाइम पे 1833 जो है ये पीरियड जो था, ठीक है, दिस ईयर्स वेयर विदाउट द पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइम पे इसलिए आप देखोगे कुछ प्रिंस का रिविलियन हुआ था, राइट, हाँ, ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी वाज साइन 1833, राइट। सो 1833 के बाद ही 1833 से लेके 38 तक सुना कांडो तीनों डिटेल में क्यों नहीं गई, लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए, टर्म्स एंड ट्रीटी कंडीशंस नहीं मिल कर पाए, इसलिए ब्रिटिश ने जो आपके अपार असम थे उसको भी एनेक्स कर दिया 1833। सो असम वाज कंप्लीटली एनेक्स एट दैट टाइम। थोड़ा सा तो पहले ही लिया था 1838 में, 1838 में अपार असम भी गया था, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन विल स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ रॉबर्ट क्रूज, ठीक है।
1820 अर्ली 1820 बोल सकते हो, जो टी कल्टिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड टू द मॉडर्न असम हिस्ट्री। अभी ये ट्रांजिशन फेज था, हम जो रेवेन्यू सिस्टम मैंने इसलिए बीच में लाया था ताकि हम लोग एंशिएंट ऑफ मेडाइवल अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एंशिएंट ऑफ मेडाइवल का एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम पढ़ के मॉडर्न असम का एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम पढ़ के कनेक्ट करके वी विल एंटर द मॉडर्न असम डायरेक्टली। ओके, ठीक है, थैंक यू।